just have to be a human being. You can't be All that. these religion people just fail at that. आवाज आ रही है बंदे की, हाँ हाँ Correct, ये correct. वो, सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही। थोड़ी थोड़ी देर के बाद 5 से 10 मिनट जब ये हाँ, हाँ. chaos में हो गए, सर मुझे दिख नहीं रहा, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, हाँ, हाँ, हाँ. यू नो, एजिटेटेड एंड Correct. एवरीथिंग। पर्सन ने जब कैमरा ऑन किया, वाज ऑलरेडी जर्किंग ऑफ। काफी जगहों पे बियर योगा भी फेमस है। बियर योगा ये क्या होता है? दारू पी के योगा करो, हैं? एंजॉय योरसेल्फ। इंजरी हो जाती है, हम्म. उसको ऐसा लगता है लाइफ तो खत्म ही हो गई। करेक्ट. नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है द याडीज पॉडकास्ट शो पे। और हर बार की तरह हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्कोर के बारे में बात किया था। अब उसी तरह से कुछ रिलेटेड, पार्कोर नहीं लेकिन ये हमारा इंडियन वर्जन ऑफ पार्कोर है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे साथ है द योगा कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट वन एंड ओनली युक्ति भाटिया। थैंक यू युक्ति फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Yeah, that's my pleasure. I have called you and you came on one call only. ये युक्ति की अच्छी बात है तो थैंक यू। thank you आने के लिए after reading all those emails. I'm so sorry. I'm so sorry about the delayed response, but I actually honestly forgot. Yeah, Yeah, that's but not I that's genuinely was looking forward to this. correct. Hmm. So युक्ति, हम शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे शो पे और एक बार। So Thank युक्ति, you. the very first question is, how are you doing mentally? Mentally, honestly, Yeah. quite confused, but like on a scale of 0 to 10, कि 0 आप कितना बुरे हो और 10 आप कितना अच्छे हो, quite confused, बीच में थोड़ा सा shuffle होता रहता है, but mostly towards 10, like completely 10. Okay. How are you doing overall? Overall, in what all aspects, like Everything. financially, emotionally, physically, in every way, Every way. I think great. 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 That's what everyone wants to do in their I life. think I'm in a very sweet space in my life where I'm very content with whatever I have, and I'm Yeah. enjoying every bit of it, every moment, no matter how challenging or how giving or how taking. I'm just enjoying this journey quite a lot. Correct. So let's jump to the first question of this very podcast. आप मुझे डिफरेंशिएशन बताइए, बिकॉज योगा आता है तो योगा के दिमाग में लोगों को ऐसा लगता है योगा इज कनेक्टेड टू और इट इज रिलेटेड टू अ रिलीजन. Okay. Like people have this mindset that you yoga बोला तो हिंदुइज्म से. Mhm. Obviously it is part of Hinduism, Hmm. but yoga is not connected to any religion, but it is itself it's a religion. तो मुझे आपसे ये जानना है कि योगा का डेली लाइफ में एसेंस क्या हो सकता है और योगा इन डेप्थ में है क्या? ओके, तो ये बोलना कि योगा किसी भी रिलीजन से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है, वो थोड़ा नाइंसाफी होगी, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट वेयर इट एक्चुअली केम फ्रॉम, Yeah. जस्ट आउट ऑफ a will to show respect from the place of its origin. So 100% Hinduism is something that is responsible for introducing yoga to the rest of this world. It has come from Hinduism, but talking about the goodness of yoga, I don't think just because of religious restrictions somebody should be asked to not perform it or not accept it as a part of lifestyle because वो एक certain religion से belong नहीं करते. That would be very cruel, I think. That will be a part of ahimsa. Yeah. And as we talk about yoga, I don't think yoga promotes ahimsa. सो योगा अब के टाइम में जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, हम लोग मोडिफाई करते हैं अपना लाइफस्टाइल, हम लोग इवॉल्व करते हैं टाइम के साथ। तो अभी इतना इवॉल्व हो जाना चाहिए एटलीस्ट दैट वी स्टॉप कनेक्टिंग योगा विद अ स्पेसिफिक रिलीजन। एंड योगा इटसेल्फ इज नॉट अ रिलीजन, लेट्स नॉट यूज दैट वर्ड बिकॉज इट कैन बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। Yeah. Religion can have very different definitions for every other individual. Let's just understand that it's a better way of living. It's a way of lifestyle. It's something that tells a person how you should be as a person in your real life and whatever you do as a professional or as a person, as a daughter, as a son, or whoever you're sharing a relationship with. As a human being, what kind of a person you should be. So yoga can be a great tool and a great technique to teach you that. So I think as a lifestyle it can be considered, not as a religion, of course. Yeah. So it's a daily life practice if you involve Everyday that in. life practice to be better every day, to become your better version every day, because challenges are going to come your way every day. It's not like Correct. one day today I face some problem, for the rest of my life there is going to be no problem. Correct. It is impossible. Of course I'm growing every day. I'm accomplishing many things every day. I'm coming across a lot of challenges. I'm discovering my maximum potential also. So yoga will help me a lot to deal with all those ups and downs.
सो इसी तरह अगर अगला सवाल मेरा ऐसा है कि ब्रीथ एंड मूवमेंट्स, ब्रीदिंग एंड मूवमेंट्स, ये योगा का एसेंशियल पार्ट है। योगा के काफी सारे मूवमेंट्स में ब्रीदिंग और मूवमेंट्स इंक्लूडेड है, जहाँ पे वो एक फॉर्म ऑफ योगा आ जाते हैं। तो मुझे यही जानना है कि आपके पर्सपेक्टिव से ब्रीदिंग अगर एक ही कंट्रोल्ड है बट मूवमेंट इज नॉट क्लियर्ड, सो डू यू फील कि तो भी योगा अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है और दोनों हैज टू बी अलाइंड इन अ वे, ऐसा कुछ है? जब हम योगा की बात करते हैं तो अलाइनमेंट इज द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स कि ओके। हमारा हाथ किस एंगल पे है, हमारा पैर किस एंगल पे है, और उसके पीछे रीजंस होते हैं कि किस वजह से वो एक सर्टन आसन क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटी से मूवमेंट की बात कर लूँ, मैं बाल आसन चाइल्ड पोज की बात कर लूँ, तो वी हैव टू सिट इन अ सर्टन वे, वी हैव टू रोल आर हिप्स बैक इन अ सर्टन वे ताकि लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। वी हैव टू स्ट्रेटन आर बैक्स इन अ सर्टन वे अगेन ताकि लोअर बैक पे प्रेशर ना आए, एंड वी स्टिल हैव टू गो फॉरवर्ड टेकिंग आर टाइम टू ईच इट्स ओन, जैसे भी जिसको भी जो फॉर्म सूट करे। तो वो एक सर्टन वे में वो फॉर्मेशंस डिसाइड की गई है बिकॉज उसके पीछे रीजन है। अगर आप रैंडमली किसी मूवमेंट में बिना एंगल्स या बिना अलाइनमेंट का ध्यान रख के चले जाओ, इट विल मेक नो सेंस, इट माइट हार्म योर बॉडी बिकॉज वी नेवर नो आपका फिजिकल हिस्ट्री अभी तक का क्या रहा है। मे बी यू आर नॉट रेडी इनफ फॉर दैट मूवमेंट। तो अलाइनमेंट आपको एक बहुत स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है, और वो स्ट्रक्चर के अंदर, उस अलाइनमेंट के अंदर मूवमेंट क्यों हो रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। आप सांस ठीक तरीके से ले रहे हो या नहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। ब्रेथ और मूवमेंट का आपस में यही कनेक्शन है कि वो आपको एक स्ट्रक्चर बिल्ड करके देता है। अगर मैं अगर मैं कोई ऐसा मूवमेंट कर रही हूँ जहाँ पर मुझे झुकना है बहुत ज़्यादा आगे, और मैं सांस बाहर छोड़ने की जगह सांस अंदर ले रही हूँ, विच इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस, अगर मैं सांस ले रही हूँ तो माई अपर टॉर्सो, माई बॉडी विल एक्सपैंड फॉरवर्ड, यू नो दिस प्लेस विल ओपन अप। बट मूवमेंट में तो मैं उसका काउंटर एक्शन कर रही हूँ, मैं कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। सो यू अंडरस्टैंड, व्हेन आई एम फॉरवर्ड फोल्डिंग एंड मैं सांस ले रही हूँ, हाउ विल दिस मूवमेंट गो टुगेदर? दिस विल नॉट। सो इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एब्डोमिनल पेन। तो योगा से आप कुछ रिलीफ कुछ अक्वायर करने जा रहे थे, बट यू क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन। पोटेंशियल इंजरीज फॉर यू या इन द या। फ्यूचर। तो इसीलिए ब्रेथ का अंडरस्टैंडिंग विद द राइट काइंड ऑफ मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस अलाइनमेंट से, इस अंडरस्टैंडिंग से हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है फ्रॉम लीडिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कि अगर हमारी प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल मेरा बैक पेन मेरा प्रॉब्लम है, दैट इज पॉइंट ए, तो मेरा पॉइंट जेड है कंप्लीटली बैक पेन खत्म कर देना। तो अगर मैं बिना अंडरस्टैंडिंग के जा रही हूँ, बिना स्ट्रक्चर के जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं होगा वो पाथ सीधा सीधा कैसे है। मैं इधर उधर उधर उधर, मे बी आई एम जस्ट गोइंग राउंड एंड या। राउंड एंड राउंड एंड आई डोंट नो हाउ टू गो फॉरवर्ड। सो या, ब्रेथ एंड मूवमेंट का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, इट गिव्स यू वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर टू गो टुवर्ड्स योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वट एवर दैट माइट बी। तो जैसे आपने बात की फ्यूचर इंजरीज, तो मैंने वो ध्यान में रखा व्हाइल यू डिस्क्राइब फ्यूचर इंजरीज आज इन, वो इंस्टेंट पेन नहीं होता, मतलब बाद में आपको काफी इफेक्ट करता है। यस। कैन यू एक्सप्लेन दैट फ्यूचर इंजरीज में क्या क्या हो सकता है इफ वी, अगर हमने एक तरह की जो, जैसे मैंने कोई भी एक आसन पकड़ लिया, अगर मैं उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ बट आई एम डूइंग इट लाइक फॉर अ वीक एंड स्टफ, सो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। बिल्कुल। तो मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या है? ठीक है, अभी जैसे एक बहुत ही सिंपल मूवमेंट ले लेते हैं, चलना। हम्म, चलना हमें लगता है हमें ठीक से आ रहा है, बट हमें एक्चुअली नहीं आता चलना भी। चलना चलना भी एग्जैक्टली, आई नो इट साउंड्स वियर्ड। मैं बराबर चल रहा हूँ ना। मुझे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है ठीक से चलने की। अच्छा। हम चलते भी कैसे, जैसे अगर हम चल रहे हैं, जिन्हें फ्लैट फुट का प्रॉब्लम नहीं होता, फ्लैट फुट हम्म, यानी आर्च आर्च नहीं है बीच में, हम्म, फ्लैट फुट का प्रॉब्लम नहीं होता, जब हम चल रहे हैं हमारा लोड पहले टो की तरफ करेक्ट। जाना चाहिए, देन हील। सो दिस इज हाउ वी शुड वॉक। कई लोग पहले हील रखते हैं, स्लिप करते हैं, दूसरे पैर का हील रख देते हैं। सो आप देखिए, आपका आपका जो आपका जो क्रिएट हुआ है वो आर्च, इट इज द नेचर हैज डन इट फॉर अ सर्टेन रीजन, कि ताकि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैं हाथ हाथ अगर ऐसे रखती हूँ, इस ग्रिप में कम जोर है, लेकिन अगर हाथ में ऐसे रखती हूँ तो इस ग्रिप में ज्यादा जोर है। आप करेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर एक नेचुरल आर्च क्रिएट हो रहा है। करेक्ट। तो पैर का भी जब जो आर्च बना है, इट इज टू सपोर्ट द इंटायर मस्कुलर एंड बोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, कि किस तरीके से किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसके उस वेट को, पूरा वजन, उस बॉडी के स्ट्रक्चर का पूरा वजन हमारा पाँव ही संभाल रहा है। तो अगर आप कदम भी ठीक से रखना अभी नहीं जानते, द मोस्ट बेसिक मूवमेंट दैट वी डू, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी चीज़ें जो हम इंजरीज ठीक करने के लिए कर रहे हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग
बिल्ड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आज चल रहे हैं और आपने हील पे, आज आप नोटिस करना कि अगर आप हील पहले रख कर चल रहे हो, आप ऐसे ही थोड़ा-सा ब्रिस्क वॉक करने लग जाओ, फिर आप ऐसे ही थोड़ा-सा भागने लग जाओ, आपको सेकंड डे पे नीज़ में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं था। हुँ, अगर यही भागना आप वापस सही टेक्नीक से करोगे, आपको पता आपको कदम कैसे रखना है, आपको पहले टो रखना है, देन द हील हैज़ टू कम, और उसके लिए आप अपना पूरा एंगेज करके रखोगे बॉडी हुँ, को। कि हुँ, जैसे मार्चिंग में हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, आर्मी हुँ, में प्रैक्टिस करते हैं, या आप स्कूल में बच्चों को पीटी कराते हैं, हम लोग मार्चिंग में जो कदम उठा के रखना प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज विद द अंडरस्टैंडिंग कि पहले कदम रखना कैसे है। ओके। सो अगर चलना भी हमको नहीं आता ठीक से, हुँ, और अगर हल्का सा हमने चलने में भी गलती कर दी, तो हमारे घुटने काम करना बंद कर देते हैं लॉन्गर रन में, जो कि हमारी हुँ, मदर्स के साथ जनरली होता है, फादर्स के साथ जनरली होता है टुवर्ड्स द एल्डरली एज, बिकॉज द मोस्ट बेसिक थिंग वॉकिंग, इवन दैट इज नॉट बीइंग डन प्रॉपरली। सो विद टाइम वो जो कंटिन्यूअसली प्रेशर पड़ रहा है ना गलत पैर रखने की वजह से उनके घुटनों पे, वो लेटर ईयर्स में उनको शो हो रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं फॉरवर्ड फोल्ड की प्रैक्टिस करती रहूँ, मैं आगे योगा में झुक रही हूँ, मुझे अभी लग रहा है कि अरे मैं झुक पा रही हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन है, फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी है, हासिल कर लेंगे, हुँ, बट यू डोंट नो हाउ मच इन्फ्लेमेशन दैट मूवमेंट इज क्रिएटिंग। हुँ, हुँ, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हुई, आपको नहीं पता चलेगी, हुँ, नेक्स्ट डे आप वापस मैट पे गए हो प्रैक्टिस करने, अभी तक वो इन्फ्लेमेशन हील नहीं हुई है, बिकॉज ये कोई मैजिक नहीं है कि आज कुछ इंजरी हुई और हील हो गया। कुछ भी टूट जाए बॉडी का हल्का सा भी हिस्सा, उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो इंटरनल इन्फ्लेमेशन आप किस स्टैंडर्ड से पता लगाओगे, यहाँ मुझे कुछ स्क्रैच लगा, मुझे पता चल गया, इंटरनली क्या इन्फ्लेमेशन है, आई कांट सी दैट। योर बॉडी विल नॉट गिव यू इंस्टेंट फटाफट ऐसा कुछ, कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं देगा कि ओके अंदर ना हुँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो करेक्ट, अगर मैं फॉरवर्ड फोल्ड कर रही हूँ, आज एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ, मैंने कल दोबारा किया वो चीज़, थोड़ी इन्फ्लेमेशन और क्रिएट हुई, क्योंकि हील तो हुआ नहीं था। करेक्ट, मैंने तीसरे दिन और ब्रेक नहीं लिया, मैंने फिर फॉरवर्ड फोल्ड किया अननेसेसरी, जबकि कोई नीड नहीं है, मुझे हुँ, पेन हो रहा है, मैं फिर भी खींच रही हूँ कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, पेन ही तो हो रहा है, इंजरी थोड़ी हो रही है, आई एम तो एबल टू वॉक आफ्टर दैट। हुँ, बट यू सी ड्यूरिंग दैट पेन व्हाट आई एम डूइंग, मैं उसको और इन्फ्लेमेट कर रही हूँ, और इन्फ्लेमेट कर रही हूँ, टू द हुँ, पॉइंट कि वन रैंडम डे व्हेन आई डिसाइडेड टू डू अ फॉरवर्ड फोल्ड अगेन विदाउट एनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट, मुझे स्लिप डिस्क हो गया। हुँ। अच्छा, ये ऐसे रिलेटेड होता है, हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय धीरे, स्टेप। ऐसे नहीं कि कोई इंजरी आपको उसी दिन हुई है, हुँ, वो हुँ, आप हुँ, बहुत लंबे टाइम से कोई चीज कंटिन्यूअसली गलत करते आ रहे हो, बावजूद इसके कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है हुँ, हुँ, that I'm not feeling comfortable, that I'm not happy with this movement, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। When you feel out of breath in a certain movement, it is your body's way of telling you you need to get out of this mode. First you need to understand कि इस situation में सांस लेनी कैसे है। Once you have a hold of your breath, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा सांस मुझे लेनी आती है अच्छे से। Which means अगर सांस नहीं ले पा रहा, जो चीज़ पे मेरा इतना अच्छा कंट्रोल है, that means my body is giving me a signal that I need to get out of this posture. विच इज़ वाई वो लॉन्ग टर्म में इंजरी खराब होती है। तो आपको पहले से पता होना ज़रूरी है कि सांस पे कंट्रोल होना क्या होता है, ब्रेथ प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। ब्रेथ प्रैक्टिस अच्छी है तो आप वो अपनी मूवमेंट के साथ कनेक्ट कर पाते हो कि सही सांस के साथ मैं सही मूवमेंट कर पा रहा हूँ ना, सो दैट मेंटली एटलीस्ट यू आर श्योर कि आप एक स्ट्रक्चर में जो रूल्स लिखे हैं उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हो। बिकॉज अगेन यू डोंट वांट टू फेस एनी इंजरी इन द लेटर ईयर्स। आप कर ही इसलिए रहे हो ताकि आपको पेन ना हो फ्यूचर में जब आप बूढ़े हो जाओ। हुँ, So that is the exact concept of it. Not building any potential injuries for yourself. That is why structure is very, very important. करेक्ट। Mm. सो मैक्स टू मैक्स क्या इंजरी हो सकती है, मतलब मेजर इंजरी अब तक की क्या हुई है, जिस अगर आपके पूरे करियर में अगर आपने कुछ देखा है ऐसे, तो मैं मेजर। बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी वजह से किसी को नहीं नहीं, कोई आपकी इंजरी वजह नहीं से नहीं, हम हुई। आस्किंग आई एम आस्किंग कि रैंडमली ऐसे मतलब क्या हो सकता है, मेजर टू मेजर क्या होता है मतलब। बहुत कुछ हो सकता है, मतलब किसी का स्लिप डिस्क तो आपने बता दिया। स्लिप डिस्क बहुत मेजर चीज है, ओके, हाँ, बहुत मेजर हाँ, चीज है। ओके। ऐसा दर्द होता है कि मतलब इंसान बिस्तर से नहीं उठ पा रहा तो क्या काम करेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग, हाफ डेड। yeah, I mean, या somebody who wants to do so much of yoga, somebody who wants to be an athlete and run, और उसको अचानक से ऐसे इंजरी हो जाती है, उसको ऐसा लगता है लाइफ तो खत्म ही हो गई। करेक्ट, कोई इतना एक्टिव पर्सन बेड पे लेटा कैसे रह सकता है, बट वो करेक्ट, पेन इतना एक्सट्रीम होता है दैट यू कांट इवन मूव। करेक्ट। अगर किसी को ऐसे इंजरी हो जाए तो, और वो सिर्फ स्लिप डिस्क नहीं, वो बॉडी में किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है। अगर किसी का हैमस्ट्रिंग टियर हो जाए, कोई लिगामेंट टियर हो जाए, जो कि हो सकता है, आप खींचे जा रहे हो जगह को, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, किससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और कुछ टियर हो गया और वो पेन हुआ आपको, और आपको उस मोमेंट पता भी नहीं चला कि वो पेन इंजरी का था या जस्ट जो नॉर्मल रोज प्रैक्टिस में हो रहा है। यू सी हाउ वो ज़रा सा निग्लेक्ट के बाद वो अगेन फ्यूचर में, आई I've seen a lot of people just stretching unnecessary,
उनका लिगामेंट टीयर हुआ एंड नाउ दे कैन नॉट रन एवर इन देयर लाइफ, दे कांट इवन Okay. डू अ ब्रिस्क वॉक। वो इतना केयरफुली उनको चलना पड़ता है। तो आप इतना एक्सट्रीम भी प्रैक्टिस को नहीं करना चाहिए कि आप खुद के लिए हाँ एक बहुत मतलब ही डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो। योगा इज सपोज टू हेल्प यू, बट दिस माइंडसेट ऑफ एक्सेलिंग इन योगा, थ्रिलिंग योगा. थ्रिलिंग, और एकदम ये मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, इन्वर्जन करेक्ट. करने, 2 उंगलियों पे खड़ा हो जाना है, ऐसा करना है, it's not necessary for everybody. I mean, if you like to do it, you can do it, but then there has to be patience, there has to be structure, and there has to be an understanding कि वो with time आता है. Not everything can be done quickly, and not everything can be done just by yourself. You need a lot of support of the right teachers. You need a lot of assistance from the right kind of skilled people who can help you. So करेक्ट. yes, injuries बहुत major level की हो सकती है. That some injuries that can actually stop you from doing anything at all in your life forever. ओके. सो Hmm. स्कैरी भी था, अच्छा भी था, Hmm. बट एजुकेटेड पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड. प्लीज समझो, ऐसे ही कुछ भी मत करो. Hmm. सो अनदर क्वेश्चन इज लाइक अ लेमैन लाइक मी, जिसको योगा के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है, नॉट Hmm. इन डेप्थ. Hmm. नाउ दैट आई हैव रिसर्च सो आई नो अबाउट इट. Hmm. बट एज अ लेमैन, Hmm. जब कुछ पता नहीं योगा के बारे में, बट आई वांट टू स्टार्ट इट, मतलब मुझे में है कि आई वांट टू डू. मैंने मैट खरीद लिया, सब खरीद लिया, एंड सब थोड़े यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देख ली एंड फिर शुरू कर दिया. सो व्हाट इज द बेसिक पार्ट, लाइक इवन इफ एनीवन कांट अफोर्ड, मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है Hmm. क्लासेस जाना है कुछ भी, Hmm. तो मतलब बेसिक से बेसिक चीज वो क्या कर सकता है? I mean, एक तो मुझे लगता है कि एक इंसान जो एक योगा मैट खरीद पा रहा है और उसके पास लाइफ में इतना टाइम है कि उसने सोचा 1 घंटा तो मैं योगा करूंगा, हम्म, उसके पास डेफिनेटली इतना बजट तो है कि वो एक क्लास को अफोर्ड कर सके, क्योंकि जितने का एक योगा मैट होता है उतने की उसको कहीं पर भी कोई ग्रुप क्लास मिल जाएगी। ग्रुप क्लास क्या होता है मतलब? मतलब not just one individual one-on-one training, but like 5 people together learning from a teacher ओह, in an ओके. online structure or offline structure, which I'm going to talk about अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. हाँ हाँ. Even this can be dangerous अगर 5 से गिनती 60 की हो गई तो. ओह. So I'll just talk about that also, या because हर चीज़ अति में बहुत बुरी हो जाती है. करेक्ट. But what I wanted to say कि अगर आपको genuinely किसी इंसान के पास टाइम है कि उसने इतना इतना थॉट थॉट आया उसके दिमाग में, तो उसने बैठ के एक्चुअली सोचा होगा ना, यानी उसके पास ज़िंदगी में करेक्ट. फुर्सत है इतनी तो कि वो सोच सके कि मेरी बॉडी को अभी क्या नीड है, तो मुझे उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, चलो योगा करते हैं. योगा के लिए क्या ज़रूरी है, योगा मैट, चलो खरीद के आते हैं. तो उस पे इतना बजट तो है कि वो ये टाइम अफोर्ड कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, है ना? तो करेक्ट. एक बेसिक योगा क्लास तो आप जॉइन कर सकते हो एज अ बिगिनर, अनलेस एंड अनटिल आपको उस उस पूरे कल्चर का एक बेसिक आइडिया नहीं लग जाता, तब तक आपको ऐसा रैंडमली यूट्यूब पे नहीं देखना चाहिए. बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला, सामने वाला टीचर आपको क्या बता रहा है और आप क्या परसीव कर रहे हो, इन दोनों बातों में बहुत फर्क हो सकता है. और आपका वो जो डाउट है ना, वो क्लियर करने के लिए वो यूट्यूब का टीचर इन पर्सन नहीं बता पा रहा आपको. ओके. तो वो यूट्यूब का क्रिएटर तो अनअवेयर है कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो? क्या परसीव कर रहे हो उसकी बात को. राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट. हाँ, और वो करते 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 अगर आपको इंजरी हो गई तो यू नो तो करेक्ट. एक बेसिक क्लास तो मैं सबको बोलूंगी, इवन इफ यू कांट अफोर्ड, सेव सम मनी एंड डू गो फॉर एनी टीचर हु फॉल्स अंडर योर बजट वाला ब्रैकेट में फॉल करता है. और बहुत सारे टीचर्स है, एवरीबडी इज विलिंग टू टीच. बहुत से ऐसे टीचर्स भी है मेरे नोन में जिनको दे डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स. अच्छा. उनका उनका source of earning is something else, but as teachers they're very passionate about distributing their knowledge among other people. They're very passionate about just teaching yoga as an art or teaching yoga as a way of lifestyle and helping people not go through injuries in their lives. So there are so many teachers out there. You can find them through social media platforms and everywhere. मेन आपको ये चीज़ है कि अगर आपको सच्ची में सारे आपके ऑप्शंस नहीं है आपके पास, आप सच में नहीं कर सकते कोई क्लास ज्वाइन, तो योगा मैट पे आपको सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ करनी है, बैठना है और सांस लेना सीखना है. कितनी देर तक सिर्फ अपने सांस के साथ कनेक्टेड आप बैठ सकते हो, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड. हम लोग जिम में जाके वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं, 2-4 बार हमें कोई सिखाएगा, 5वीं बार हम समझ जाएंगे, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे. एक योगा क्लास में 4-5 बार एक आसन की अंडरस्टैंडिंग हमको किसी ने दी, हमने समझी, छठे टाइम हम खुद धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस करेंगे. सब कुछ आ जाता है विद टाइम. द ओनली थिंग जो नहीं आती, चाहे आप कितनी मेहनत क्यों ना कर लो लाइफ में, आप कितने बड़े मिलियनर क्यों ना बन जाओ, आपको एक जगह पे बिना
किसी थॉट से बॉदर्ड हुए, किसी इमोशन से अफेक्टेड हुए एक जगह पे आपको शांत बैठना आता है कि नहीं? और कितनी देर तक आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांत बैठ सकते हो? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, जो अल्टीमेटली हर एक योगी का सपना होता है कि एक दिन मैं अपनी प्रैक्टिस से कुछ ऐसा अचीव कर लूँ कि मुझे शांत बैठना आ जाए, मुझे मेरे सांस के साथ कनेक्टेड रह के शांत बैठना आ जाए। सो अगर आपके पास सच में कुछ अवेलेबल नहीं है वो एक पाथ तक आपको ले जाने के लिए, तो आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो आपको मालूम है ना योगा का क्या है, आप देखो आप कितना कर सकते हो। और कुछ नहीं, तो बस सांस लेना सीख लो, आप सांस ले पा रहे हो कि नहीं, आप सांस ठीक से छोड़ पा रहे हो कि नहीं, और ये करते दौरान कितने थॉट्स आपको परेशान करते हैं, आप उन थॉट से डिस्ट्रैक्ट होके वापस आप अपने सांस पे फोकस ला पा रहे हो या नहीं। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट anybody and everybody can do even without the guidance of a teacher. Just breathe in and breathe out is what I say. Inhale the goodness, exhale all the negativity from your life. ये अच्छा था, ये वापस करना है आपने कहा। इनहेल द पॉजिटिविटी, Inhale the goodness and positivity. यस, Exhale all the negativity from your life. ओके, थैंक यू। The easiest thing that या anybody can do. या सो अभी जैसे ही आपने एक्सेल इनहेल की ये जो बातें की, तो हमारा जो मंकी माइंड है, ये मंकी माइंड कैन इट बी कंट्रोल्ड बाय योगा, परफॉर्मिंग योगा, और इट इज समवेयर एज वी डू योगा आवर माइंड्स आल्सो गेट ट्रेन्ड? मतलब हम कहीं ना कहीं हम मेंटली भी खुद को ट्रेन कर रहे हैं, फिजिकली भी कर रहे हैं। तो इस पूरी ट्रेनिंग में हम हमारे मंकी माइंड पे कंट्रोल ले सकते हैं क्या योगा के साथ? अल्टीमेटली हर किसी का जो गोल है वो यही है। कोई भी अगर खाली योगा नहीं किसी भी चीज़ के अंदर आता है, वो अल्टीमेटली अपने दिमाग की शांति के लिए ही आता है, या अपने दिमाग की कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करने आता है। जैसे अगर कोई डांस सीखने जा रहा है तो उसके दिमाग में है कि डांस उसको करना पसंद है, और जब वो डांस में प्रोग्रेस करता है तो माइंड को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है ना? डांस में कुछ ऐसा प्रोग्रेस करके उसने कोई अवार्ड हासिल कर लिया तो माइंड को लगता है कि आई एम सो ब्रिलियंट, द माइंड इज गेटिंग कॉन्फिडेंट, mind is making you feel that you are something in this world, that ego is building. So whatever we are doing outside किसी भी चीज में physically, that is developing a certain connection with the mind only. If I participated in a certain program or a certain competition and I failed badly, Yes. I shouldn't feel this, nobody should feel this, but what happens generally is I would start to feel very low, I would start to feel maybe I'm not good enough, I'm worthless. So I'm training my mind to feel that way ki my mind is now always telling me ki yaar tujhse nahi hoga next time because you're worthless. So Correct. physically जो भी हुआ outer world में, I won or I failed or whatever happened, my mind has started to grab information from that. So if we specifically talk about yoga, योगा में एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। पहले हम आपको एक इजी स्ट्रक्चर के साथ लेके जाएंगे। प्लीज हाँ गाइड मी दैट। हाँ, तो इजी स्ट्रक्चर के साथ लेके जाते हैं कि आप सांस ले सकते हैं कि नहीं, आपकी कोई क्लिनिकल ऐसी हिस्ट्री रही है या नहीं। खाली योगा नहीं, किसी भी फिटनेस फॉर्म की बात अगर हम करें, अभी मैं सिर्फ योगा आसनास की बात कर रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट योगा एज अ होल। सिर्फ योगा आसनास की बात करूँ, अगर किसी का आसनास की तरफ आने का जो मोटिव है वो ये है दैट दे वांट टू ट्रेन देयर माइंड थ्रू बॉडी, तो अगर एक स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो उनको पता चलता है कि आज इस क्लास में मेरी उंगली इधर से इधर नहीं जा रही थी कल तक, आज इस क्लास में टेक्निक्स के साथ थोड़ा प्रैक्टिस किया तो इधर से इधर तक चली गई। तो अब मेरे माइंड में ये थॉट आ गया कि इतनी तो बेवकूफ नहीं हूँ मैं, इतनी तो स्मार्ट हूँ कि मुझे कोई चीज समझाई जा रही है तो मैं वो समझ पा रही हूँ। नाउ द माइंड इज बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट टाइम कमिंग बैक टू दैट योगा क्लास, अगेन मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ, मुझसे हो नहीं रहा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगी, बट आई नो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, माई टीचर इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, शी इज़ एन एक्सपर्ट और ही इज़ एन एक्सपर्ट एंड दे आर टेलिंग मी कि आप करो, आई नो वीव गॉट योर बैक, आप करो। मैंने किया, मैंने ट्रस्ट किया उन पे एंड मैंने ट्रस्ट किया खुद की बॉडी पे, एंड आई डिड दैट आसना और वो आसना हो गया मुझसे। नाउ माई माइंड इज बिल्डिंग द सेंस ऑफ ट्रस्ट in somebody, in myself. Okay, I am somebody who has so much of potential कि मैं अपने fear को overcome करके कुछ कर सकती हूँ। So off the mat जब वो person योगा क्लास के बाहर जाएगा तो उसको और भी कई लाइफ की ऐसी situations मिलेगी, so that person will be able to correlate। वहाँ भी तो मैंने अपने fear को overcome करके वो आसना किया ना,
यहाँ भी लेट्स ट्राई एंड डू इट, नो मैटर हाउ मच इट इज स्कैरी, लेट्स ट्राई एंड डू इट, एंड रियलिटी में वो पर्सन वो फियर ओवरकम कर लेता है इन रियल लाइफ ऑल्सो, नो मैटर वो किसी भी चीज का फियर हो। तो ये जो माइंड को ट्रेन करने वाली बात है ना, वो फिजिकली इस तरीके से आती है, व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग चैलेंजेस ऑन योर सेल्फ फिजिकली, व्हेन यू स्टार्ट करेक्ट। धीरे धीरे लर्निंग कि देयर इज अ वे ऑफ एवरीथिंग, देयर इज अ टेक्निक टू एवरीथिंग, there is a way of overcoming all your emotional restrictions, all your mental restrictions, all your physical restrictions, वो करते 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 you start training your mind also. The mind has started to understand the body holds so much of potential. So this connection when we build, that is what yoga provides, the connection of body and mind. Body के थ्रू आप अपने दिमाग तक जाते हो, और बॉडी में जब आप इतना इतना प्रेशर डाल रहे हो कोई भी आसन करते टाइम, आपके पास उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचो। आज ऑफिस में क्या हुआ था, अरे यहाँ पर मैं ऐसे अपना प्लैंक होल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, 60 सेकंड से ज़्यादा मैं कांपने लग गई हूँ, मुझसे होल्ड नहीं हो रहा, मेरा ध्यान है मैं और सांस कैसे कंट्रोल करूँ अपनी, और धीरे धीरे कैसे ब्रीदिंग करूँ कि मैं 60 की जगह 2 मिनट कंट्रोल कर पाऊँ। उस टाइम अब देखो मेरा ध्यान पूरी तरीके से एक ही चीज में है, 30 से 60 सेकंड तक कंट्रोल करना है, कैसे करें कैसे करें। सो माई माइंड इज गेटिंग ट्रेन हाउ टू फोकस एट वन थिंग एट वन टाइम। नाउ आई एम नॉट थिंकिंग ऑफिस में आज क्या हुआ, घर पर आज क्या हुआ, रूममेट्स के साथ आज क्या हुआ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट एनी मोर। So this is how any practice, not just yoga, but anything that you do with a lot of dedication, anything physical that you do, which is why any physical activity, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस हो, जिमनास्टिक हो, डांस हो, कुछ भी, anything physical, it's extremely important for you to, for your body to learn what discipline is all about, and for your mind also to learn what discipline is all about. Discipline of maintaining focus, not being distracted, having a sense of confidence, having a sense of trust in somebody, all the positive aspects of it. This is what yoga does. This is what every other physical activity does. This is how through body you can train your mind. नाइस। सो जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं who just got into yoga a year back, and there is one of my friend who is actually doing yoga and stuff since a long time. तो मैं जब रैंडमली उनसे बात करता हूँ तो मैं उनको पूछता हूँ भाई तुम योगा क्यों करते हो? भाई चलो वो तो लाइफस्टाइल है, नाउ दैट यू डोंट गो जिम बट यू डू योगा, यू कीप योरसेल्फ बिजी, आप अपने आप को बिजी रखते हो। बट वो उनका एक स्टेटमेंट होता है, फाइंडिंग बैलेंस। आप फाइंडिंग बैलेंस क्या होता है, मतलब योगा करने से क्या फाइंडिंग बैलेंस, वो आप डिस्क्राइब करें, व्हाट इज फाइंडिंग बैलेंस विद योगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, थ्रू बॉडी यू कैन ट्रेन योर माइंड। तो जो भी डिफिकल्टीज लाइफ में आपको फेस करनी पड़ रही है, लेट अस जस्ट कंसीडर द नेगेटिव्स ऑफ लाइफ, ठीक है, बट हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू कोप अप विद दैट, और हाउ टू बी बेटर एट इट, डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स, डीलिंग विद द नेगेटिविटीज, या कोई चैलेंजेस आपके काम में आपको दिख रहे हैं, तो हाउ टू गिव योर 100% टू दैट। लेट अस कंसीडर दैट द दैट इज ऑल पॉजिटिव ऑफ इट, ऑफ अ सिचुएशन। 100%। तो वो बिल्ड करने में योगा काफी हेल्प कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे नहीं आता फियर ओवरकम करना, इन रियलिटी मेरी जो भी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आ रही है, when I'm going to my yoga mat and I'm doing all of these things and I'm building a sense of accomplishment and I'm building a sense of trust, I'm building a sense of overcoming, what does it feel like to overcome a certain fear, a certain kind of fear, तो वहां से मेरा माइंड समझ पा रहा है इन चीजों को, लिसन अगर ये है तो ये भी हो सकता है, दैट काइंड ऑफ बैलेंस। अगर आप, और अगर सिर्फ बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो पूरा दिन अगर आप बैठे हो, लेट अस जस्ट कंसीडर द नेगेटिव ऑफ अ सिचुएशन, कि पूरा दिन आपने एक ही पार्ट किया, एक ही चीज की, व्हाट इज द काउंटर एक्टिविटी ऑफ इट? करेक्ट। तो मैट पे जाके आपने पूरी कसर निकाली कि अब मैं इतना बैठा नहीं हूँ खाली, नाउ आई एम स्ट्रेटनिंग माय बैक, आई एम वर्किंग ऑन, जो मैंने अपने शोल्डर्स पे इतना अननेसेसरी लोड डाला है, मैंने जो अपनी स्पाइन पे इतना लोड डाला है, हिप्स को इतना स्टिफ करके रखा है, नाउ आई एम वर्किंग ऑन डूइंग द काउंटर मूवमेंट ऑफ इट। सो अल्टीमेटली यू कांट लीव योर ऑफिस जॉब, 9 to 5 है तो बैठना तो पड़ेगा, बट यू कांट गिव अप कि 9 to 5 है तो बैठना पड़ेगा, बट 9 to 5 के बियॉन्ड आपके पास जो बचा कुचा टाइम है, वो 9 to 5 में जो भी आपकी बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है उसको रिलीज भी आपको करना पड़ेगा। सो दैट इज द बैलेंस दैट यू हैव टू मेंटेन। करेक्ट, दैट इज फाइंडिंग बैलेंस। समझ गया मैं भी फाइंडिंग बैलेंस क्या है। तो बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, जैसे मैंने 2 अलग तरह की बातें आपको बताई कि एक तो कॉर्पोरेट से, when you go out of your corporate sector, तब you need to take care of your body a lot,
करेक्ट। तो एक वो एस्पेक्ट हो सकता है, और दूसरा ये कि मेंटल रिस्ट्रिक्शंस जो आप फेस करते हो कि यू आर नॉट एबल टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस इन रियल लाइफ, on mat you get a sense of overcoming all those fears and mental restrictions and sense of trust and करेक्ट। everything, so फिर वो आप जाके रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक स्वीट सा बैलेंस हर एस्पेक्ट में क्रिएट करने में आपको योगा हेल्प करेगा एज अ प्रैक्टिस, एज अ लाइफस्टाइल। करेक्ट। सो जैसे हम योगा की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो योगा में ऐसे जैसे आपने आसना बोला, तो योगा में ऐसे और क्या क्या एलिमेंट्स है और ऐसे क्या क्या वर्ड्स है जो हम योगा में यूज करते, जैसे आसन हो गया, या मैंने विन्यासा क्या होता है, ओके, तो ये सारी क्या चीज है, आप मुझे इसको जरा एक्सप्लेन कर सकते हो और ऑडियंस को भी बता सकते हो एग्जैक्टली ये सब सारी चीजें क्या होती है? बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ योगा होते हैं। ओके, इट इज अ फॉर्म्स ऑफ योगा। हाँ, ओके, हाँ। फॉर्म्स ऑफ योगा होते हैं। तो योगा जो है अल्टीमेटली जितना भी पीछे पीछे हम जाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, एक टर्म समझ में आता है हिंदुइज्म, दूसरा टर्म समझ में आता है ऋग्वेदा, जिन्होंने भी हमारे एंसेस्टर्स ने पढ़ा या लिखा। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स, कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज और मीनिंग्स, उनके डिस्क्रिप्शंस निकाल के समझा कि जो भी ओरिजिन है योगा का, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रिंसिपल्स आए, जो फिलोसफीज आए, वो समवेयर और द अदर इट इज गेटिंग डिराइव फ्रॉम ऋग्वेदा। फिर धीरे-धीरे और हमारे ऋषि मुनि आए, उन्होंने और इस चीज़ को समझा और इस प्रैक्टिस को अप्लाई किया। देन वी टॉक अबाउट पतंजलि जी, वो भी ऋषि ऋषि हैं। तो हम उनके सूत्रास पे, योगा सूत्रास, उनको एज़ अ रूल बुक फॉलो करके चलते हैं। उनकी योगा फिलॉसफीज़ में होता है यम और नियम। तो यम मोस्टली रिलेटेड टू द माइंड, एंड नियम जो हम फिज़िकली कर रहे हैं। ओके। तो ये हो गया पतंजलि योगा। और एंशंट फॉर्म ऑफ योगा जो जो पतंजलि की जी की तरफ से आया है, यम नियम, या उसके अलावा अगर हम कुछ बात करें, तो जो टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है दैट इज हथा योगा, हठ योगा। हट योगा। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म्स बनते रहे, और भी कई टीचर्स आए, और भी कई लोगों ने अपनी मॉडिफिकेशंस डाली टू सूट द पीपल्स बॉडीज एंड देयर फिजिकल नीड्स, देयर मेंटल नीड्स एंड एवरीथिंग। तो जो जो आपने बोला विन्यासा, इट इज अ फॉर्म ऑफ योगा, जैसे हथा योगा, अष्टांगा योगा, विन्यासा। अब धीरे 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 और भी आ रहे हैं, यिन योगा, ऐसा योगा, वैसा योगा, जो कि कैसा कैसा योगा? बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस लोग बना देते हैं, और हाँ। बहुत गलत वे में भी बना देते हैं। हम्म, आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं, हम लोग तो क्योंकि योगा की कम्युनिटी में है ही, तो हमको योगा के आसपास के सारे जोक्स भी पता होते हैं। हम्म। तो आई वुडंट टेक द नेम ऑफ एनी सिटी, बट काफी जगहों पे बियर योगा भी फेमस है। बियर योगा ये क्या होता है? दारू पी के योगा करो, हैं? एंजॉय योरसेल्फ। दारू पी के योगा करो? Exactly, you know how offensive that could be या for आई मीन, people who like traditionally follow this as a way of lifestyle, and वो आप as teachers, हाँ हाँ मैं खुद हाँ। हठा योगा टीचर हूँ, तो as teachers if we believe this कि इसने हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, हम्म, यू नो हमारी लाइफ के बहुत ही बुरे फेज से निकाल के हमको एक बेटर फेज में डाला, जहाँ हम लाइफ समझ पा रहे हैं, अभी एक बेहतर इंसान बन पाए, और यही नॉलेज हम अपनी प्रैक्टिस की लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो करेक्ट। ऐसे फॉर्म्स जब एग्जिस्ट करते हैं, तो वी ऑल्सो लाफ अबाउट इट, बट देन इट्स ऑल्सो लिटिल ऑफेंसिव ऑल्सो। तो बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं विथ टाइम। यू हैव टू बी अ बेटर जज टू अंडरस्टैंड कि ये कोई फॉर्म है या इट्स जस्ट अ गिमिक। ओके, मतलब अब सारे जितने भी अल्कोहलिक है वो तो सारे खुश हो गए होंगे, बोल रहे होंगे कि यार बियर योगा। बियर योगा, किस किस गोट तरह योगा, डॉग योगा, आई डोंट नो, सो मेनी थिंग्स विच इज नॉट राइट। ओके, सो इन योगा, लाइक इस प्रोफेशन में यू हैव द लिबर्टी टू क्रिएट दैट योगा, मतलब वो You अपना have the liberty to modify movement, मॉडिफाई which is a मूवमेंट। great thing. या I am a believer of that. I am a complete believer of modifications and evolving with time. Like समझ में आता है कि स्ट्रक्चर बहुत एक्सट्रीमली ज़रूरी है। एक अनजान इंसान को किसी चीज़ में आपने फेंक दिया, उसको नहीं पता वो कल्चर क्या है या वो काम क्या है। जब उसको आप एक बिगिनर लेवल का एक मैनुअल हाथ में पकड़ाते हो, तो वो शांत होता है ना, कि अच्छा समझ में आ रही है एग्जैक्टली काम है क्या। अभी सीधा ही बच्चों को पैदा होते ही अगर आप 10th स्टैंडर्ड में डाल दोगे, उसको मैथ समझ में नहीं आएगी कि ये क्या वेरिएबल्स है, ये क्या है सब। इसीलिए हम लोग एक केजी यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते, प्लस माइनस सिखाते, ताकि एक स्ट्रक्चर समझ में आए। तो उस हिसाब से रूल बुक इज गुड, उस हिसाब से स्ट्रक्चर इज गुड, कि यही यही लिखा है किताबों में, यही यही हमको सिखाते आ रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, और ऐसा ऐसा ही करना है। बट विद टाइम जो क्योंकि ये एक फिजिकल प्रैक्टिस है, और फिजिकलिटी, हर इंसान की क्लिनिकल हिस्ट्री, हर इंसान की लाइफस्टाइल सेम नहीं हो सकती। करेक्ट। मैथ्स का एग्जाम्पल लेना इज वन थिंग, बट जब आप लाइफ की बात करते हो, वो
कन्वेंशनल वे में नहीं चल रही कि एक रूल बुक में लिखा है हर इंसान का दिनचर्या ऐसे ही होने वाला है, हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ यही बीमारी होने वाली है, इसके अलावा कोई नहीं, या हर इंसान की बॉडी में सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन होने वाली है, इसके अलावा कोई नहीं, ऐसा कोई रूल बुक नहीं है। तो आसनास भी जब हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, देर हैज टू बी अ लिबर्टी टू मोडिफाई दोज मूवमेंट, बट ऑफ कोर्स कोई एक्सपर्ट जिसको अंडरस्टैंडिंग हो कि वो मॉडिफिकेशन किस वजह से की जा रही है और किस तरीके से की जा रही है, देर हैज टू बी अ साइंटिफिक बैकिंग ऑफ दैट मॉडिफिकेशन, ताकि योगा कैन बी वेरी वेरी easy for even that person who has a lot of physical restrictions. It can be easy for even that person to perform and take benefit out of it. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक योगा आसना की बात करूँ, अधोमुख श्वानासना विच इज डाउनवर्ड डॉग, it looks like a mountain when I'm performing it or when anybody Okay. performs it. So उसमें रूल बुक के हिसाब से क्या लिखा है या वो पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन में क्या है कि legs have to be completely stretched and straight. ना इमेजिन अगर किसी लेमैन को अगर मैंने समझा दिया कि यू नो अधोमुख श्वानासना ऐसे परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेच करो, पुश करो, ये करो, वो तो कर रहा है, उसको पेन भी हो रहा है, but there is no need to go through all that pain. Just bend your knees, make it very simple, don't stretch the legs, don't keep it straight, bend your knee, make it easy for yourself. तो इसमें कुछ बहुत मेजर अचीव नहीं होगा उस पर्सन को, लेकिन उस पर्सन को 100% कोई नुकसान नहीं होने वाला। कन्वेंशनल वे में करें तो हो सकता है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अचानक से अचीव हो जाए, बट उतना ही उसको नुकसान होने के चांसेस भी है। व्हाट इफ कोई इंजरी हो जाए, है ना? व्हाट इफ इतना पेन हो जाए कि नेक्स्ट डे वो पर्सन आना ही छोड़ दे, उसको डर लग जाए इस पूरी बात से कि नहीं भाई मुझे तो योगा नहीं करना। ये तो इसलिए इवॉल्व होना और मॉडिफाई होना और ये लिबर्टी योगा के प्रोफेशन में रखना, ये लिबर्टी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट। अगर बॉडी पेनलेस वे में एक मूवमेंट कर पा रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेरा ही हाथ है, मेरे ही हाथ मूवमेंट कर पा रहा है। तो इफ यू से कि दिस हैज टू बी द मूवमेंट ऑफ अप एंड डाउन, मे बी दिस ऑल्सो कैन बी अ मूवमेंट ऑफ गोइंग अप एंड डाउन, करेक्ट। whatever is working for me. So having this liberty in yoga, I really like that. ये और बहुत सारी फिजिकल इसमें लिबर्टी नहीं होती, देयर हैज टू बी अ सर्टेन प्रोसेस जैसे करो, बट योगा गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, अ लॉट ऑफ लिबर्टी। तो मतलब आप सपोर्ट में हो भी है योगा के? बिल्कुल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट performing Yeah, yoga yeah, with yeah. liberty. I'm not talking about changing the art Yeah, form I'm just completely. asking. No, no, not at all, not. Yeah, I'm a very traditional person. योगा, हाँ। Yeah. तो आपने जैसे पतंजलि, हत क्या हता hatha yoga, हता योगा, विहांसया, जो कुछ भी आई कांट प्रोनाउंस इट, ashtanga. अष्टांगा, Hmm. तो आप इसको बाइफरकेशन करके उसको थोड़ा थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो एग्जैक्टली वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या मूवमेंट, जैसे पतंजलि का आपने उसके बारे में बताया, तो ये अष्टांगरा और ये जो कुछ भी आई कांट Please don't ruin this anymore. यस यस यस, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, बट हाँ मतलब ये जो है वर्ड्स है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉपर्ली? तो hatha yoga, अयंगार योगा, बीकेएस अयंगार गुरुजी जिन्होंने वो फॉर्म मॉडिफाई किया, तो बेसिकली हठा योगा के मूवमेंट्स जहाँ पर हम लोग बॉडी के अलाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल त्रिकोण आसना, त्रिकोण आसना में योर लेग्स आर इन अ ट्रायंगुलर form and you're bending sideways, so it's like a triangular formation. तो त्रिकोण आसना अगर कर रहे हैं, इसको ये आसना हमारा हठा योगा का पार्ट है। अब किसी इंसान के लिए अगेन बिकॉज ऑफ फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस वो डिफिकल्ट हो रहा है करना, वो नहीं कर पा रहा, but we want that person to stay in that posture and hold for a while, because holding is a part of yoga when we specifically talk about yoga asanas, क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं एक सर्टन जगह पे जो पेन होता है या सेंसेशन होती है, when the affected areas get a little a little inflamed or whatever, the blood circulation goes towards that specific area, so naturally it starts to heal. धीरे धीरे आपकी मोबिलिटी बेटर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होती है। तो हम चाहते हैं कि वो पर्सन होल्ड करे, बट क्या करे, उसको फिजिकल रिस्ट्रिक्शन इतना है कि वो हाथ नीचे ले जा ही नहीं पा रहा। करेक्ट। है ना? एज की वजह से हो सकता है, क्लिनिकल हिस्ट्री, या कभी मूव ही नहीं किया, 9 to 5 जॉब करने की आदत रही है पिछले 20 साल से, इतना कभी फिजिकल बॉडी पे काम ही नहीं किया। अब इनको रोक के कैसे रखें? इनको पकड़ तो नहीं सकते ना हम ज़बरदस्ती, तो उनकी तो खुद की कोई मेहनत लगे ही नहीं। वी डोंट वांट टू मेक हिम डू इट, वी वांट हिम टू डू अ सर्टेन थिंग और हर टू डू अ सर्टेन मूवमेंट। तो अयंगार योगा में वी यूज अ नंबर ऑफ प्रॉप्स यूज करते हैं, कि जैसे अगर मुझको नीचे झुकना है और मेरा हाथ
यहाँ तक पहुंच पाया, ये जमीन है, मेरा हम्म, हाथ यहाँ तक पहुंच पाया। हम्म, मैं तभी होल्ड कर सकती हूँ जब मेरे हाथ के नीचे कोई सपोर्ट है। हम्म, सो जनरली जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, उनका हाथ यहाँ पहुंच जाएगा, वो अपना बॉडी का वेट यहाँ डाल देंगे और काफी देर तक रुक पाएंगे उस हम्म, पोस्चर में। हम्म, अब मेरा हाथ यहाँ पहुंच ही रहा, तो मैं हवा में कैसे हैंग करूँ, है ना? हम्म, रुकूं कैसे उसमें? करेक्ट। तो इस और इस डिस्टेंस के बीच में हम एक योगा ब्लॉक रख देंगे। अच्छा। अब मैंने इधर से योगा ब्लॉक पकड़ दिया और दूसरा योगा का ब्लॉक जमीन को टच कर रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके की जो हम प्रॉप्स और इक्विपमेंट्स के साथ हेल्प लेते हैं, वो बीकेएस अयंगार जो गुरुजी हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया दैट यू कैन यूज अ नंबर ऑफ प्रॉप्स, यू कैन यूज योगा बेल्ट। अगर हम्म, हाथ पीछे ले जा रही हूँ अपना पैर पकड़ने के लिए, लेकिन अभी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है हम्म, कि पैर तक पहुंच पाऊँ, तो बेल्ट का एक कोना मैंने अपने पैर पे बांधा, दूसरा कोना हाथ में पकड़ा, एंड नाउ आई नो कि चलो कुछ तो है हाथ में। नाउ आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग। सो विद द बेल्ट आई विद टाइम आई ट्राई टू स्ट्रेच 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 टिल द टाइम माय टो कम्स एंड टचेस माय हेड। विद टाइम, विद वीक्स एंड मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। तो नंबर ऑफ प्रॉप्स के साथ जब हेल्प मिलती है, दैट इज अयंगार योगा। अष्टांगा योगा इज क्वाइट एडवांस। हम्म, उसमें सीरीज चलती है, तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ आसनास है, उसको उसी सीरीज में परफॉर्म किया जाएगा। जैसे हाथा योगा में हम अपना सीक्वेंस खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा कोई आज योगा का फ्लो करना है हठा योगा क्लास में, जहाँ पर मुझे सिर्फ लेग्स पे ध्यान देना है, सो आई विल कंबाइन ऑल दोज नंबर ऑफ आसनास जिसमें ज़्यादातर लेग्स का काम है। माई लेग्स हैव टू बी स्ट्रेच्ड और माई लेग्स हैव टू बी लोडेड विद अ लॉट ऑफ वेट और वट एवर माई बॉडी इज वेट, और आई एम यूजिंग इक्विपमेंट्स जैसे मैंने बोला अयंगार योगा का। तो मैं ऐसे ऐसे कुछ कुछ आसनास ले लूंगी या क्रिएट करूंगी मॉडिफिकेशन के साथ, वो हठा योगा में मेरे पास फ्रीडम है टू क्रिएट माई ओन फ्लोज। अष्टांगा योगा में एक नंबर ऑफ सीरीज चलती है, 3 सीरीज होती है, एक बिगिनर लेवल की, एक सेकेंडरी सीरीज होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी, और एक जो लास्ट होती है एडवांस। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अष्टांगा योगा उन्हीं 3 सीरीज में ही चल रहा है। अगर मैंने आज प्राइमरी सीरीज प्रैक्टिस किया, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि मुझे सोचना है कि अच्छा अब कौन सा आसना करूं, अब कौन सा आसना करूं। वो 1 to 10 एक ही लाइन चल रही है। हम्म, नॉट 10 एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ही आसनाज है, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 1 to 10 बस एक ही वही चल रही है, मुझे रोज सिर्फ वही 10 आसना ही प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन मैं उस 10 आसना को रोज 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 फ्लो में प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो गई, अब मैं मूव करूंगी अष्टांगा की सेकेंडरी सीरीज पे। फिर मैं डे 1 से स्टार्ट करूंगी। अब सेकेंडरी सीरीज के भी एक वही लिमिटेड आसनाज है, अब मैं उसी को प्रैक्टिस करती रहूंगी फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, फॉर years एंड years, द सेम मूवमेंट्स। Once I accomplish all of that and I gain a lot of confidence, I gain a lot of strength that I can move to the next level. तो ये एग्जाम की तरह वो चलता रहता है कि पहले आपने ये लेवल क्लियर किया, फिर ये लेवल क्लियर किया, फिर ये लेवल क्लियर किया, तो इट इज हम्म, लाइक दैट। हम्म, तो थोड़ा सा बस वे ऑफ परफॉर्मिंग एंड वे ऑफ क्रिएटिंग द क्लास, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा आसना किस तरीके से कर रही हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन है हर चीज में, विच मेक्स ईच ऑफ इट्स फॉर्म वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम्म, बट सब में योगा ही हो रहा है, सब में आसना ही हो रहा है। हम्म, अब फ्रीडम योगा का ये होता है कि आज मुझे एक स्पेसिफिक आसना करने का मन है, तो मैंने ये आसन इधर से उठा लिया, वो आसन इधर से उठा लिया, वो जस्ट आसन लाइक इधर अ से फ्री उठा लिया, स्टाइल डांस। या ये आसन। और कहीं ना कहीं मैं एक करेक्ट तरीके का फ्लो क्रिएट करके चली। ये नहीं कि मैंने आसन आज एक तो फ्लेक्स एक स्प्लिट्स हनुमान आसन कर लिया, फिर अगला आसन मेरा बैक बेंडिंग का हो गया, फिर तीसरा आसन मेरा फॉरवर्ड फोल्ड का हो गया, ऐसे नहीं। if I'm picking up asanas, so I'll pick all those asanas which fall in the same category. Like I'm doing all asanas maybe from different forms, but ultimately I'm working on my forward fold practice only. Or if I've picked up asanas again from different forms or different series, but I'm focusing on my legs flexibility only or mobility only, तो I'm performing that only in a flow। कि पहले मैं legs पे ऐसे काम करूँगी, फिर मैं ये आसना लूँगी leg का ये part पे वर्क करने के लिए, फिर मैं उस सीरीज का वो आसना भी कर लेती हूँ, दैट विल हेल्प मी अलॉट। सो इस सीरीज से चल सकते हो, ये फ्रीडम बहुत रहता है। देर आर फॉर्म्स, देर आर मैनी मैनी फॉर्म्स ऑफ योगा, बट बहुत फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको क्या अच्छा लगता है, वो हर किसी का एक पर्सनल प्रेफरेंस बन जाता है एक पॉइंट के बाद, जब वो सब समझ जाता है कि अच्छा दिस इज फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी। करेक्ट। नाइस। सो मेडिटेशन और योगा ये दोनों अलग चीज है या दोनों एक ही पार्ट है? जैसे लोग कभी कभी बोलते हैं मेडिटेशन इज फुल्ली डिफरेंट, आई डू मेडिटेशन बट आई डोंट डू योगा। तो मेडिटेशन और योगा ये दोनों अलग है या दोनों एक ही बोलते हैं मोतियों की माला के मणि है? एक ही है, एक ही है। ऑफ कोर्स।
पूरा अगर हम कॉन्सेप्ट योग का कॉन्सेप्ट अगर वास्ट वे में बात करें तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग आसनास. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अभी मैं Correct. सिर्फ योगा आसनास की बात कर रही हूँ, विच इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. तो योगा एज अ होल हम बात करते कि एक लाइफस्टाइल है. तो यहाँ पर हमने बात करी यम और नियम की कि यम में कितने फैक्टर्स आते हैं. समथिंग दैट हेल्प्स यू इन बीइंग अ बेटर पर्सन मेंटली, मेकिंग द राइट चॉइस, डूइंग द राइट थिंग. फिजिकली भी बहुत सारी चीज़ें आ गई कि आप तप कर पा रहे हो कि नहीं, आप यू नो चैलेंज एक्सेप्ट करके आप उसमें रह पा रहे हो कि नहीं, आप ठीक से परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं. दूसरा आता है अपनी सांस पे काबू करना, प्राणायाम. आप प्राणायाम कर पा रहे हो कि नहीं. तो मेडिटेशन इज नॉट डिफरेंट देन बीइंग एबल टू सिट फॉर योर प्राणायाम प्रैक्टिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बिकॉज मेडिटेशन में आपको हमेशा एक सोर्स ऑफ फोकस चाहिए. जैसे मेडिटेशन के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल हम त्राटक की बात करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ वे ऑफ गोइंग टू दैट मेडिटेटिव जोन, जहाँ पर एक दिया मैंने जला दिया, पूरे कमरे में अंधेरा है, पिच डार्क, मगर उधर सिर्फ एक दिया चल रहा है और दिए की जो लौ है मेरी आंखें सिर्फ वही देख सकती है. अब त्राटक के कॉन्सेप्ट और प्रोसेस के हिसाब से जब तक वो दिया जल रहा है, जब तक मेरी आंखें उस लौ को देख सकती है, मैं आंखें झपकाऊंगी नहीं. तो एक तरीके का तप हो गया. करेक्ट. है ना. और साथ साथ मैं सांस भी ले रही हूँ अपनी. तो अब मैं जब आंखें झपका नहीं सकती, मेरा पूरा ध्यान किस चीज पे है कि आंखें नहीं झपकानी, आंखें नहीं झपकानी. मेरे दिमाग के पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं सोचूं ये भी वो भी ये भी वो भी. करेक्ट. एक वो मोमेंट आते थे नाटक करते टाइम जहाँ बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो अभी सिचुएशन के साथ. नाउ योर बॉडी नोज, योर आईज नो, योर माइंड नोज कि ये ही मेरा सोर्स ऑफ फोकस है, मुझे सिर्फ अभी इसी पे ध्यान देना है. तो इतनी ज्यादा गहराई से आप अपनी एक एक सांस महसूस कर पाते हो. तब माइंड को समझ में आता है कि यू नो बॉडी भी है कुछ. मैं, मेरा बॉडी, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड इट्स ऑल्सो टुगेदर एट द सेम टाइम, एंड आई कैन फील एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. आई कैन सेंस लिटरली लाइफ इनसाइड मी. तो आप पूरा अपने साथ जब कनेक्ट हो जाते हो और कुछ आपके दिमाग में बाहर बाहर चल रही दुनिया का जो भी है वो नहीं आपको बॉदर करता, तो आप एक तरीके से मेडिटेटिव जोन में जा रहे हो. बट अल्टीमेटली आपने स्टार्ट किससे किया? आपने सांस के साथ ही स्टार्ट किया ना, आपने प्राणायाम ही किया. प्राणायाम इज अ पार्ट ऑफ योगा. So meditation is no different than just choosing what form of breathing practice works the best for you, which makes it very easy for you to stay connected with your body, stay connected with your breath, understand whether or not you're doing the breath practice correctly. Correct. And then ultimately finding a place, finding balance in your practice where now you know कि मेरा पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ अपनी सांस के ऊपर है, एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं. अब मैं सांस बेटर ले पा रही हूँ, अब मेरी सांस लेते टाइम आवाज नहीं आ रही. Correct. अब मैं सांस बेटर ले पा रही हूँ और सांस लेते टाइम आवाज नहीं आ रही. मुझे रिस्ट्रिक्शन फील नहीं हो रहा इंटरनली, मुझे पेन फील नहीं हो रहा. सो ये सारी चीजें जब आप डिस्कवर करने लगते हो, यू आर एट अ वेरी पीसफुल point in your practice, which is meditation only. करेक्ट. सो योगा, जैसे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो योगा में एक ऐसा टर्म है स्वधया. स्वधया बराबर मैंने प्रोनाउंस किया? स्वधया, स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय. तो ये स्वाध्याय का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, उसको आप उसको समझा सकते हो? सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिसर्च. जैसे मैंने पहले बोला कि अगेन ये यम का ही पार्ट है, because it relates to the mind. कि having the understanding कि you are not just to tell people कि आपको इतना पता और आप उनको बता रहे हो. You need to have that acceptance. You need to not be so egoistic that you know everything and you have to teach. You need to have that acceptance that you need to learn too. Correct. You need to do your self study too. You need to do that work before teaching a class. Not just class, in life किसी भी चीज़ में आप जा रहे हो या किसी भी चीज़ को आपने परफॉर्म करने का ठाना है, तो उसके बैकग्राउंड में जितना काम करना है, उसके पीछे जितनी मेहनत करनी है, वो आपके हाथ में और आपको उसमें 100% देना पड़ेगा. दैट इज़ स्वाध्याय कि हर रोज़ वो चीज़ करनी है आपको. अगर मैंने चूज़ कर लिया कि योगा मेरा प्रोफेशन है, योगा मेरा काम है, तो हर रोज़ मैं एटलीस्ट 1 घंटा उसको और सीखने में, उसको और बेहतर तरीके से समझने में लगा रही हूँ. वो मेरा एक डिसिप्लिन मैंने अपने पूरे दिनचर्या में एक मेंटेन कर लिया. सो दैट इज स्वाध्याय, दैट आई हैव मेंटेन्ड अ डिसिप्लिन ऑफ डूइंग दैट सेल्फ स्टडी. आई हैव मेंटेन्ड द डिसिप्लिन दैट एवरी डे आई हैव टू टीच माई सेल्फ सो दैट आई कैन every day I have to not just be perfect, every day I have to learn so that I can teach better. Basically self discipline. Yeah. तो
कमिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसे नाउ दैट यू आर अ योगा इंस्ट्रक्टर, योगा कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, एंड यू हैव अ वेरी गुड इंस्टाग्राम पेज, आई विल मेंशन डाउन हियर. Okay. तो It's Yoga with Yukti, by the way. yes. Please say it again. Yoga with Yukti. Yoga with Yukti. Let's do yoga with Yukti. Awesome. Yes. So जैसे अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अपार्ट फ्रॉम योगा एंड स्टफ, what kind of DMs you receive? Horrible. Some very lovely, but then some very horrible. And of course, if you're a public Yeah. figure on Instagram, if you have a public profile, you can't stop people from sending you DMs. You can block them, of course, Yeah. but initially तो you can't stop. एक पहला नजर तो पड़ ही जाता है उस पे, है ना? So yeah, horrible DM. Now तो still Instagram has this request वाला send request. You can't message if you I think that's the best thing Instagram has done. Yeah. Now all those creepy uncles will not just keep sending messages, not understanding the सामने से तो कुछ आ नहीं रहा है. I have to work on my self dignity a little bit. So that's Can you share any story, like ऐसी कुछ ऐसी worst story? हाँ, मतलब लड़कियों के साथ तो सब लड़कियों को ऐसा लगता है तो कितनी आम बात है यार, सारे अंकल भी स्पेसिफिकली अबाउट यू. आई मीन यू आर अ योगा इंस्ट्रक्शन, तो करेक्ट मतलब सबका नजरिया देखने का अलग होता है. करेक्ट उस हिसाब से हम आस्किंग. करेक्ट. और मैं उनको ब्लेम कर सकती हूँ, लेकिन 50% आई विल नॉट ब्लेम देम, बिकॉज अल्टीमेटली कई जगहों पे बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कल्चर कई जगहों पे उसको बहुत ओवरली सेक्सुअल वे में भी देखा गया है. ओके. somehow weird movies and वेस्ट में कहीं कई ऐसी मूवीज है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, बट आई हैव सीन सीन्स वेयर yoga teacher is shown to be the hot yoga teacher and bending and the camera का angle and everything. So sexualize उसको उस वे में किया गया है. Now whatever the reason behind that may be, but as an audience अगर इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए ना. आई हैव आल्सो सीन दोस मूवीज, आई हैव आल्सो सीन दोस सीन्स की जहाँ पर द एक्ट्रेस इज प्रेजेंटेड एज अ वेरी हॉट योगा टीचर. बट मैं तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना कि रियल लाइफ में, मैंने आई एम कमिंग आउट ऑफ दैट फिक्शनल वर्ल्ड दैट आई जस्ट सॉ, रियल लाइफ में आई नो कि एक रैशनल माइंडसेट है मेरा. मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि ब्रो दैट इज जस्ट entertainment, it's not the reality. But sadly, unfortunately, general public वो rationalize नहीं कर पाती चीज़ों को सही गलत के बीच में. तो हाँ, इस तरीके के काफ़ी मैसेजेस आते हैं. एंड मैं तो बहुत ही बोल्ड किस्म की लड़की, तो मुझे इतना डर नहीं लगता. आई वेयर व्हाट आई वांट टू वेयर, आई डू व्हाट आई वांट टू डू. सो आई एम नॉट रियली अफ्रेड ऑफ दोस टेक्स्ट मैसेजेस और जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए एज अ टीचर. Can you share one? That's what I'm asking. Yeah, वही बता रही हूँ. But it's very scary for people who are not as mentally strong as me. Okay. Who are not as bold as me. नया उन्होंने ये प्रोफेशन चूज किया है. और like I'll share this has happened basically with every girl who started a career in yoga. Every girl, every Indian, some Indian guy has done that too. Okay. Specifically Indian. And it is very sad to say, but हम सबकी कहानी में वो करने वाला आदमी एक इंडियन ही था. अच्छा. Why I'm mentioning this, I'll tell you later on. Yeah. वो करने वाला कोई ना कोई एक हिंदुस्तानी आदमी ही था. तो हमारे पास ऐसा एक इंक्वायरी आती है एक योगा टीचर के पास, जो इंक्वायरी बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में लिखी है. और ऐसा लगता था कि बाद में जब हम पढ़ते थे लगता था कि यार कितना बैकग्राउंड वर्क किया होगा ना इसने अपनी इंक्वायरी को जेन्युइन साउंड करवाने में, कि वो लिटरली पढ़ के आया है योगा के बारे में, वो लिटरली देख रहे हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में हमसे बातचीत कर रहे हैं. हम लोग बेचारे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, यार हमको अच्छा लग रहा है यार, मतलब लोग जानना चाहते हैं. हाँ, अच्छा स्टूडेंट, मतलब वो इंटरेस्टेड है, उसको वैल्यू समझ में आ रही है प्राणायाम की, वो मेरे से बात कर रहा है, मुझे भी बात करनी है. that sense of belonging to a community which yoga people have that immensely. हम लोगों में बहुत है हमारा community सब में होता है. कोई किसी भी प्रोफेशन में बिलोंग करे तो, जैसे आप एक सिनेमाटोग्राफर हो तो आपको लगेगा मेरे भाई लोग है ना. कोई भी वीडियो के बारे में बात करे तो आप एक्साइटेड हो जाओगे आर्ट के बारे में बात करने के लिए. तो हम भी लगता है कि एक स्टूडेंट सामने से इस तरीके से बात कर रहा है तो इसके साथ हमारी क्लास कितनी अच्छी होगी ना, टुगेदर वील ग्रो, आई विल हेल्प द स्टूडेंट, कितना अच्छा होगा सब.
तो हम बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, वी गेट इनटू इट एंड वी गेट इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्सन, बिकॉज योगा इज वेरी क्लोज टू या एवरीबडीज या हार्ट, या जो भी उसमें घुसा है आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ हीलिंग एंड ट्रॉमा एंड व्हाट नॉट। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा होने के बाद जैसे मेरा और मेरी हर दोस्त के साथ जो यही सेम सेम प्रोसेस के साथ इंसिडेंट हुआ, फाइनली व्हेन वी स्टार्टेड द क्लास हमें बोला गया कि मोस्टली अभी कोविड के बाद का मैं बता रही हूँ, क्योंकि कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, करेक्ट। तो अभी मैं भी ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस ही करती हूँ। हाँ हाँ ऑफलाइन की अलग डर है, बीइंग अ गर्ल या अलग ही या डर है वो, बट ऑनलाइन में एटलीस्ट यू हैव दिस लिबर्टी कि चलो फिजिकली तो नहीं है ना कोई, हाँ 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 कुछ भी गलत होता है यू कैन जस्ट क्लोज दैट विंडो, या आप मीटिंग कैंसिल कर सकते हो। या तो ऑनलाइन में वो लिंक भेजा, फीस भी आ चुकी है हमारे पास। हाँ एक एक तो ये ट्रायल मांगने का जो है ना कल्चर, इट्स हॉरिबल, हाँ आई मीन ट्रायल इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि या एक फ्री ट्रायल तो हर योगा टीचर देती है। हाँ I mean, which is one way of understanding this person does not respect your करेक्ट। profession at all. If he is that cheap कि he cannot pay you for your 1 hour of dedication into a class, he doesn't deserve you as a yoga teacher, no matter how डेमो high. क्लास या डेमो क्लास, वन फ्री डेमो क्लास तो हम भी डिजर्व करते हैं ना। हम भी डिजर्व करते हैं। सो दैट, या तो वो एक अच्छा मीडियम है समझने के लिए कि इस इंसान में इतना टाइम नहीं लगाना आपको, कोई आपको अगर फ्री करेक्ट। में कोई चीज़ मांग रहा है तो वो एक्चुअली वैल्यू नहीं करता उस चीज़ को। तो डेमो क्लास की फीस भी दे दी, यू नो हाउ हाउ जेन्युइन एवरीथिंग इज लुकिंग, यस यस, कि आप तो फीस के बोलिए, ये आप तो मतलब तो अच्छा स्टूडेंट है, उसको समझ हाँ। में आ रहा है मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। अब जैसे ही मीटिंग ऑन करी, दैट पर्सन इज सिटिंग नेकेड, ओ फ्री। completely naked. हाँ हाँ And what happened with my friend? हाँ Oh my god, that person was naked, of course. The moment she started the video, हाँ पहले तो बहुत देर तक स्क्रीन ब्लैक थी, शी कॉन्स्टेंटली वाज टॉकिंग कि सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही, सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही, आवाज़ हाँ आ रही है बंदे की, हाँ हाँ करेक्ट ये करेक्ट। वो, सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही। थोड़ी थोड़ी देर के बाद 5 से 10 मिनट जब ये हाँ हाँ केओस में हो गई, सर मुझे दिख नहीं रहा, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, हाँ हाँ यू नो एजिटेटेड एंड करेक्ट। एवरीथिंग। पर्सन ने जब कैमरा ऑन किया, वाज ऑलरेडी जर्किंग ऑफ ओ टू द प्रेजेंस ऑफ दैट योगा टीचर ऑन स्क्रीन। शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज्ड, रो रो के बेचारी ने मुझे फोन किया। नाउ हाँ आई तो एम लाइक सुपर पागल, मैं तो हाँ उसको घर से निकलवा देती। आई करेक्ट। हैव बीन क्रेजी, आई हैव बीन ऑल नट्स, मुझे डर नहीं लगता, बट हाँ आई हाँ गेट वेरी एंग्री, हाउ डेयर ही, यू यस नो यस। आई एम वेरी बोल्ड लाइक दैट, मुझे को रोना नहीं आता। बट आई फील बैड फॉर दीज अदर टीचर्स, दे डोंट हैव टू बी ऑल लाइक मी, एंड ऐसा कुछ बहुत उखाड़ लाइक नहीं इट लेंगे वो या लोग जिंदगी में ऐसा हाँ बन के, हाँ हाँ मैं ऐसी हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ। बट वो नहीं है ऐसे, दे आर सॉफ्ट एंड दे आर नाइस, एंड उनका पर्पस लोगों को बेहतर बनाना था। एंड यू नो विद टाइम दे बिकम लाइक मी, कि अब तो बनना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज नेवर एंडिंग। बट इनिशियली उनका इतने ब्यूटीफुल प्रोफेशन में जो एंट्रेंस होता है ना, वो बहुत हॉरिबल वे में होता है, एंड दिस कम्स थ्रू इंस्टाग्राम डीएम्स ओनली। ओके when we are made to believe, when we are manipulated कि you know कोई genuinely स्टूडेंट है, genuinely कोई हमारे साथ काम करना चाहता है, genuinely हमारी हमारी इतने सालों की जो मेहनत रही है प्रैक्टिस की, उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, हमें क्लाइंट मिल रहा है, हमारी कम्युनिटी बन रही है, अल्टीमेटली वी ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न सम या मनी या एटलीस्ट। हमारी लाइफ कैसे चलेगी, यू नो बेसिक फी तो कोई हमको देने को रेडी ब्रेड है, एंड बटर। फाइनली ब्रेड एंड बटर है वो हमारा भी। तो व्हेन सच इंसिडेंट्स हैपन, हमें लगता है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन एबिलिटी एंड लाइक ability and your value ki yaar, is it even worth it to be in this profession anymore, you're not even respected by the other gender. With time we have all achieved the sense ki you don't have to be respected, you don't have to be like I also get a lot of trolls on social media. With time I've understood I don't have to be liked by all. They have no clue about my life, मेरी life में क्या चल रहा है, they have no clue what difference I've brought in my students life, जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मेरे प्रिंसिपल्स है, जो मैं एक्चुअली क्लास में सिखाती हूँ, इट इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज कुछ भी कहो, इट्स जस्ट वन वे ऑफ ग्रैबिंग अटेंशन ऑफ पीपल सो दैट या you can get more visibility कि this is your profession and this is what you do. More and more people will start seeing you, okay एक योगा टीचर एग्जिस्ट करती है, that's it. क्लास में आप क्या सिखा रहे हो वो सिर्फ आपको पता है, आपने क्या वैल्यू प्रोवाइड की अपने स्टूडेंट्स को, आप वाकई में किसी की डिजीज में किसी को अगर हेल्प कर पा रहे हो, आपने किसी की फिजिकल हेल्थ में कोई बहुत ही ज़्यादा वेट वाला इंसान, अगर उसको आपने उसकी हेल्थ बेटर कर दी, उसकी प्रॉब्लम्स चले गए, जैसे साइटिका की प्रॉब्लम्स चली गई, या उसकी डिस्क की प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसका सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक हो गया, या उसकी
उसको जो कांस्टेंट डायबिटीज़ की वजह से उसको जो कांस्टेंट चीज़ें फ़ील होती थी, उसका इंसुलिन ड्रॉप होना, उसका ब्लड शुगर ड्रॉप होना, बहुत सारी चीज़ें, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना या बढ़ जाना, वो आपकी सिखाई हुई प्रैक्टिसेस की वजह से सब कुछ इनबैलेंस है आज की डेट में, यू नो। तो वो जो सेंस आप अपने अंदर बिल्ड करते हो ना कि आपने किसी को एक बेहतर जीवन जीने में आपका एक योगदान है, हेल्प चाहे की। छोटा सा योगदान हो, तो उस चीज़ को समझने की एबिलिटी इस तरीके के लोग रखते नहीं हैं। तो हम क्वेश्चन करने लगते हैं अपने आप को कि यार हम इतना कर रहे हैं इतना दिल से, अल्टीमेटली टू सी व्हाट दिस दैट वी आर ओनली सेक्सुअलाइज्ड एज ऑब्जेक्ट्स. So yeah, this happens a lot on an everyday basis, on an everyday basis. साइक 6 इंक्वायरीज में से कोई 2 इंक्वायरीज जेन्युइन होती है. इमेजिन द रेशियो, ऑल फोर्स आर क्रीप. correct. And that too, now there is this craze now that even that he said ki trolling and stuff, every third person want to like be cool, like wanna be cool with his comment, Yeah. sexualize or Not even maybe just body sexualizing, shame. not just body shame or sexualizing. I'll tell you one thing. There was this stupid person. मैंने कोई बहुत अच्छी वीडियो डाली थी एक ट्रांजिशन की, फ्रॉम अ सर्टन आसना टू अ सर्टन आसना विद इन अ Correct. फ्लो. It went viral. It was appreciated by a lot of people. Every other yoga person who's following me on Instagram or I'm following them, everybody commented on that video because जो योगा करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो मेरे जैसे माइंडसेट वाले लोग हैं, उनको पता है यार मेहनत लगी है इस चीज़ को करने में. अब मेरे लिए जो मेरी मेहनत है वो मुझे ही पता है. आपके लिए हो सकता है लगे यार ये तो कोई भी कर ले, हो सकता है कर लेगा, Correct. बट मैं किस पोटेंशियल से आई हूँ, मेरे लिए शायद एक उंगली बढ़ाना भी मुश्किल था, और आज अगर मैं अपने पूरे हाथ आगे बढ़ा पा रही हूँ तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है. सो इन माई माइंड मैंने बहुत अच्छा किया, एंड जो लोग मुझे जानते हैं, जिनको पता है एक्चुअली इसमें कितनी मेहनत लगती है, उन्होंने अप्रिशिएट किया. बट देयर आर पीपल हु सेड आप क्या ये वाले आसन से ये वाले आसन में ये वाला आसन कर सकते हो, लाइक दैट. मैंने कहा हाँ कर सकती हूँ, मैं नहीं मानता, करके दिखाओ. अरे सो ट्रीटिंग योगा टीचर्स एज सर्कस का क्लाउन, करके दिखाओ. क्यों करके दिखाओ? व्हाई डू आई नीड टू प्रूव एनीथिंग, या व्हाई डू आई नीड योर वैलिडेशन कि मैं फिजिकल आसनास में मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ, मैं कितना हाथ पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं हैंड स्टैंड कर सकती हूँ या नहीं. लाइक इज दैट ऑल योगा इज वॉट अबाउट? इज दैट ऑल अ टीचर इज वॉट अबाउट? यही सिखाना है क्या मुझको? अगर मैं प्रेजेंट हूँ किसी पर्सन के साथ और मुझे पता है उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या मुझे पता है कि उसकी फिजिकल क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, दैट पर्सन हैज जेन्युइनली शेयर द प्रॉब्लम विद मी, एंड बिकॉज ऑफ माई स्किल सेट और वट एवर अंडरस्टैंडिंग आई हैव अबाउट इस प्रोफेशन के थ्रू मैं उस इंसान को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, या मैं उँगलियों पे खड़ी हो सकती हूँ या नहीं, या मैं सर पे खड़ी हो सकती हूँ या नहीं, एग्जैक्टली मैं स्पाइडरमैन बन सकती हूँ या नहीं. तो ये इंस्टाग्राम कल्चर ने एक होता है hatha योगा, एक अष्टांगा योगा, एक अयंगार, एक होता है इंस्टाग्राम योगा. इंस्टाग्राम योगा जहाँ सब ऐसे कंपटीशन में लगे कि कौन कितना एक्सट्रीम मस्त ट्रांजिशन करके दिखा रहा है, Correct. कौन कितना हाथों पे खड़ा हो पा रहा है. जो नहीं हो पा रहा, काय का योगा टीचर, तुम्हें क्या आता है? फ्लेक्सिबल हो तुम, योगा टीचर हो, स्प्लिट मार के दिखाओ. क्यों दिखाओ? बराबर है. You won't believe I've been invited to gatherings. Now I'm not talking about my friends. मेरे दोस्तों का मुझ पे पूरा हक है. वो लोग मुझे बोल सकते हैं कैन यू शो अस दिस, कैन यू शो अस दैट, हमें भी सीखना है. और मुझे मजा आता है अपने दोस्त, जब मेरे दोस्त ही मेरे स्टूडेंट्स बन गए. यू नो दैट्स अगेन वन बिग थिंग ऑफ ऑनर कि फ्रेंड्स कभी बन गए. हाँ कि फ्रेंड्स तो सबसे ज्यादा रोस्ट करते हैं ना आपको. एट अ पॉइंट व्हेन योर फ्रेंड्स स्टार्ट टू रियलाइज यार ये सच में बहुत अमेजिंग कर रही है काम, हमें इसी से सीखना है, अपनी दोस्त से सीखना है. सो यू बिल्ड अ सेंस ऑफ कि आपने सच में कुछ तो बदलाव लाया है, कि आपके दोस्तों को भी दिख रहा है यार बाहर हम किसी टीचर के पास नहीं जाएंगे, हमें अपनी दोस्त से ही सीखना है, क्योंकि सच्ची में अच्छा सिखाती है. इज नॉट फूलिंग एनीबॉडी. तो अगर दोस्त सीखने लग जाते हैं, उनका हक है मुझे बोलना कि करके दिखाओ ये वो. But I've been invited to social gatherings where there's a party going on, you know. I don't even know these people very well. I'm just a guest. किसी friend का friend, that person forced me, नहीं हमारी party में please आओ, it will be fun to have you. I went there with a mindset of just enjoying a drink, maybe just having my food, just meeting new people, coming back, going to sleep. After becoming a yoga teacher, am I not human to enjoy the basic things of life? कि I can sit on a couch and I can also talk to people normally and have a drink and something. एट एवरी सोशल गैदरिंग जहाँ पर भी मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ ना, आपको पता है योगा टीचर, आपको पता है ये भी कर लेती है, आपको पता है ऐसा करती है, अच्छा करके दिखाओ ना जरा. What who do you think I am? Like इधर एक ग्लास में मैंने कुछ पानी पकड़ा हुआ है, इधर एक हाथ में मेरा प्लेट है, मैं खाना खा रही हूँ, and you're asking me
आपको आता है, आपको हेडस्टैंड आता है, आपको हेडस्टैंड आता है, प्लीज करके दिखाओ ना. प्लेट छोड़ के करके दिखा. हाँ, एंड यू वोंट बिलीव आई वाज सो नाइव एंड अंडर कॉन्फिडेंट कि पब्लिक में किसी ने बोल दिया. आई एम स्टिल दैट शाय पर्सन. मैं कॉन्फिडेंट हूँ बट आई एम स्टिल वेरी शाय कि मैं इतना ऐसा मुंहफट होके यू नो आई वोंट बी द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ अ पार्टी. आई लाइक टू बी एट अ कॉर्नर एंड जस्ट टॉक टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. I don't believe in small and random talk. I believe in a conversation कि जिसका कुछ एटलीस्ट मीनिंग हो, चाहे सिर्फ 2 लोग बात कर रहा है बस. I don't need a whole group to be there. So इस तरीके के माहौल में अगर मैं बैठी और अचानक से कोई मुझको ऐसे बोल देना, मैं इतनी नाइव थी कि मैंने कहा अच्छा ठीक है. रखा गिलास, रखी प्लेट, लोग हैं आसपास, सब खाना खा रहे हैं ना, आई एम डूइंग अ हेड स्टैंड उन सब के बीच में. मैं करके भी दिखा रही हूँ. और ये मेरी हर दोस्त के साथ होता है जो योगा टीचर है. तो ट्रीटिंग योगा टीचर्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्लाउन्स ऑल्सो, this has also come through the Instagram culture only. Correct. कि उनको एक बॉक्स में डाल दिया है. हाँ, एक बॉक्स में डाल दिया कि ये आसन करती है, ऐसा ट्रांजिशन करती है, ये कर लेती है, हाथ पे खड़े हो जाती है, ऐसे खोल लेती है, वैसे खोल लेती है. यही कॉन्वर्जेशन चलती है. सो that's quite horrible. And as yoga teachers, it's our responsibility to talk more openly about it. कि whatever you see on Instagram, it's not what yoga is all about. It can be very overwhelming for teachers and for practitioners also. शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि यार किसी रैंडम मैंने क्रिएटर को देख लिया, एक बहुत ही अमेजिंग फ्लेक्सिबल ऐसा 360 डिग्री टर्न हो रखे है स्पाइरल में, और मैं सोचती थी ये तो मुझसे कभी नहीं होगा, ये तो मुझसे कभी नहीं होगा. नॉट दैट आई डिड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि करने की नीड भी नहीं है, ये करने से कुछ ऐसा बदल नहीं जाने वाला मेरी जिंदगी में. बट मुझे लगा यार ये तो मुझसे नहीं होगा, नहीं हूँ मैं योगा टीचर. स्टूडेंट भी यही सोचा यार ये तो मुझसे नहीं होगा, कभी भी नहीं होने वाला, क्यों ही बनूं मैं स्टूडेंट, क्या ही हो जाएगा योगा सीख के, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा. सो इंस्टाग्राम पे जो चीज़ देख रहे हैं ना वो बिना स्ट्रक्चर के एकदम स्कैटर्ड है. पिक्चर्स ही पिक्चर्स, पिक्चर्स वीडियोस, पिक्चर्स रील्स, ये वो कुछ डेप्थ में, कुछ स्ट्रक्चर में किसी को समझ में आता नहीं है व्हाट योगा इज ऑल अबाउट. सो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड इट्स वेरी स्कैरी ऑल्सो फॉर एवरीबडी, फॉर टीचर, फॉर स्टूडेंट, फॉर एनी लेमैन. तो वो एक कर्तव्य के वे में ही सीमित रह गया है एक लेमैन के दिमाग में. उसको एक बॉक्स में डाल दिया. हाँ, कि भाई तुम इस सर्कल या तो मे बी इसी स्क्वायर्स में 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट परफॉर्मेंस. हाँ, क्योंकि क्लाइंट्स भी हमारे पास जब आते हैं ना, जैसे पहला क्लास मेरा किसी स्टूडेंट के साथ हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एज अ टीचर उसको बताना कि योगा की क्या क्या फिलोसफीज है, क्या सूत्रास है, क्या होता है यम एंड नियम, क्यों हम ब्रेथ पे काम करते हैं, क्यों आपको सांस पे कंट्रोल रखना जरूरी है जिंदगी के लिए, कैसे आपकी सांस में मैं पता कर पा रही हूँ कि वो इतने डिस्टेंस पे वो स्टूडेंट मेरे से बैठे, उसकी सांस की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं तो स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा. मेरा ध्यान एज अ टीचर उस बात पे है, उसका ध्यान पहली क्लास में. मैं हेडस्टैंड कितने दिनों में कर लूंगा, कितने दिन लगेंगे मेरे को स्प्लिट हो जाएगी. सब समझ रहे कि एक्चुअली वो क्या करने आए उनको पता भी नहीं है. करेक्ट, यही वो जिम वाली बात. 6 पैक एब्स, एग्जैक्टली, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बना दो सर 3 महीने में. एग्जैक्टली. ना उसके पीछे बैकग्राउंड में वो क्यों चाहिए आपको 6 पैक एब्स, क्या अल्टीमेटली है क्या, आपका हेल्थ का गोल है क्या, यू वांट टू बी अ पर्सन जो बीमारियों से नहीं जूझना चाहता फ्यूचर में, दैट इज योर अल्टीमेट गोल, और यू वांट टू बी अ पर्सन जिसको अभी पेन है, ही वांट्स टू ओवरकम दैट पेन, ही वांट्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, उसको नहीं चाहिए लाइफ में कोई क्रॉनिकल डिजीज हो या कुछ. बट नहीं 6 पैक एब्स विच इज समझ रहे हो ना आप कितना ऊपरी की सरफेस लेवल की बातें हैं ये. बट एज योगा टीचर्स अगेन इट इज आवर ब्रेड एंड बटर. इमेजिन हाउ सैड वी फील व्हेन वी हैव टू 3 महीने लगेंगे. करेक्ट. एंड देन 3 महीने में एवरी डे कब होगा. हाँ, कराते हैं. तो जब हमने सोच रखा था कि हम एक स्टूडेंट को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जेड इस तरीके से लेके जाएंगे, वी आर फोर्स्ड टू चेंज आवर पैटर्न ओनली, एंड इन दैट प्रोसेस एज अ टीचर वी फील लॉस्ट. क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा दे रहा है अगर उसके हिसाब से हमने भी खुद को मॉडिफाई नहीं किया, वी माइट नॉट इवन हैव द स्टूडेंट. एक ईगोइस्टिक टीचर सोचेगी कि नहीं यार मेरी टीचिंग को कैसे उसने क्वेश्चन किया, विल नॉट टीच. बट देन एक टीचर जो समझ रही है कि भाई हर इंसान उसको उसकी चॉइस, हर स्टूडेंट उसको चॉइस का नहीं मिलने वाला, she will have to deal with a lot of challenging situations, she will have to deal with a lot of different kinds of people coming to her or him as a student. तो उनको उसके हिसाब से मॉडिफाई करना, इट कैन बी वेरी सैड एट टाइम्स बिकॉज बहुत वैनिटी जैसे क्वेश्चंस आते हैं सामने से, एंड हियर यू आर टीचिंग समथिंग दैट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट वैनिटी, यू नो. तो जैसे कि अगर कोई लड़की है मेरी स्टूडेंट, तो उसका कॉन्स्टेंटली, कोई एक्ट्रेस है अगर मेरी स्टूडेंट, तो उसका कॉन्स्टेंटली मेरे पास ये बोलना कि स्प्लिट्स करा दो मुझे, स्प्लिट्स करने, बिकॉज आई वांट टू पुट अ नाइस पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम दैट आई कैन डू स्प्लिट्स. नाउ इस पूरे स्टेटमेंट में
उसका योगा से रिलेटेड क्या वैल्यू डिराइव करना चाहती है वो अपनी लाइफ में, उसका कोई लेना देना ही नहीं है. करेक्ट. एंड हियर वी आर ऑल अबाउट कि योगा ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे की एज अ ह्यूमन बीइंग. योगा आपकी लाइफ ओवरऑल कैसे ट्रांसफॉर्म करे और क्या क्या फैक्टर्स है, फिजिकल, मेंटल, Correct. इमोशनल, एवरीथिंग. उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है. जस्ट वन टाइनिएस्ट पार्ट ऑफ इट शी और ही विल पिक एंड हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है. करेक्ट. सो यू नो वो ऐसा कम होते 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 उसकी वैल्यू बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम इज become this. Decreased. Yeah, And मतलब as वो एक teacher less हो we गया. as teacher we struggle a lot. Hmm. As teachers we struggle a lot. सही है. So that now we are coming towards the end of our podcast. The last question नहीं है. This is second last question. Okay. The second last question is like we were talking about that group वाला contribution class. आप उसके बारे में बताइए जरा, वो इंटरेस्टिंग था, मतलब वो ये जानना है मुझे क्या है exactly. So personally, I am not a believer of group classes, but I can understand if people cannot afford it, so they are joining group classes. यानी for example, अगर एक teacher का एक class का for 1 hour charge है maybe let's say 2,500 rupees. A person individually cannot afford a session of 2,500 rupees per hour per day. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप यही चार्ज ले लो, बट कैन 3 of us join the class, आप हम तीनों को सिखा दो. Now it completely depends on that teacher whether that teacher wants to go with that pattern or not. I don't do it. I need, because this is who I am. I am extremely into the process when I'm teaching somebody. कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फ्लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा क्लास उस पर्सन के स्पेसिफिक ही बनानी है, उस पर्सन के अराउंड स्पेसिफिकली क्रिएट करनी है कि उसका क्या अल्टीमेटली गोल है, कि उसको क्या सीख रहा है, कि वो मेरे पास किस पर्पस से आई है या आया है. एंड फॉर दैट ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी क्लास में पहले दिन ही उनको फ्लेक्सिबिलिटी और ये सब कराना शुरू कर देती हूँ. आई मेक देम लिफ्ट वेट्स ऑल्सो, आई मेक देम डू वेट ट्रेनिंग ऑल्सो, आई मेक देम डू एवरीथिंग विच इज नेसेसरी फिटनेस के लिए. या मैं सिर्फ ये नहीं बोलती कि हठा योगा में यही 4 आसना है, 4 नहीं है, जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल कि उस बुक में यही 4 आसना है और मैं हठा योगा टीचर हूँ तो मैं तुमको यही 4 आसना कराती रहूंगी. एज अ कोच आई वांट टू बी डाइवर्स बिकॉज आई कैन सी यू नीड ऑल दोज डाइवर्स अप्रोचेस. तो मुझको चाहिए कि वो 1-on-1 कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, मेरे जो ये स्टूडेंट्स रहे हैं ना, जो रियल वैल्यू अंडरस्टैंड करके मेरे पास आए थे, दे हैव सीन द चेंजेस इन देयर लाइफ ओवरऑल. And since day one, they've never left me. They've never left me. I've been teaching them for years. They've never left me. Because एक कनेक्शन बन जाता है स्टूडेंट टीचर का एक्चुअली में, कि मैं आपके पास एक गोल के साथ आया था और डे 1 से हम उस गोल पे काम कर रहे हैं और आज हम इतने नजदीक है, हम रोज कुछ अचीव कर रहे हैं. ग्रुप क्लास में क्या हो जाता है ना, टाइम तो मेरे पास 1 घंटे का ही है. नॉट दैट आई कैन गिव ऑल माई लाइफ टू वन क्लास. आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू मेनी क्लासेस बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू a lot of money has to come, you know, that inflow has to come. Otherwise how will I take care of my own body? I need to give my body good food ताकि मैं उन क्लासेस में परफॉर्म कर सकूं या सिखा सकूं या घंटों घंटों बात कर सकूं क्लासेस में. आई नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो आई नीड अ साउंड स्लीप, जिसके लिए मुझे एक छत चाहिए जहाँ पर यू नो एक अच्छा घर चाहिए जहाँ पर शोर शराबा ना हो, ताकि एक साउंड 8 घंटे की मैं स्लीप ले सकूँ, ताकि मैं मेंटली प्रेजेंट रह सकूँ क्लास में. यू नो बेसिक तो लाइफ अफोर्ड करने के लिए मुझे पैसा चाहिए. सो आई कैन नॉट गिव ऑल माई टाइम टू दैट 1 hour क्लास. तो उसमें होता क्या है ना, 3 अलग तरीके की क्लिनिकल हिस्ट्री के लोग आए हैं, 3 अलग तरीके का गोल लेके आए हैं, 3 अलग तरीके की स्पीड है चीज़ों को ग्रास्प करने की. जैसे मैंने एक कोई कॉन्सेप्ट समझाया, एक बंदा समझ गया तुरंत, दूसरा समझने की कोशिश कर रहा है, तीसरे के सर के ऊपर से निकल गई. अब मैं एक ही बात को 50 बार नहीं बोलूंगी टिल द टाइम आई एम श्योर कि उस लास्ट पर्सन को समझ में आया या नहीं, बिकॉज आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ दैट वन पर्सन जिसको इंस्टेंटली समझ में आ गया. यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो उस प्रोसेस में व्हाट द टीचर जनरली डज, वो अपना काम कर रही है प्रॉपर स्पीड से, रिगार्डलेस कि किसी को समझ में आ रहा है या नहीं. वन-on-one में इट्स अ डीप कॉन्वर्सेशन. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप पूछ सकते हो कि मुझे ये पार्ट स्पेसिफिकली समझ में नहीं आया. नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल इन टीचिंग जस्ट वन पर्सन ओनली एट अ टाइम, सो आई कैन बी वेरी वेरी क्लियर कि अच्छा अब हमको ये समझ आएगा नहीं, कैन वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस प्लेस और नॉट. ग्रुप में मैं 3 लोगों की बात कर रही हूँ, चलो 3 में हम लोग फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, 3 सेम दोस्त आ गए एक ही एज ग्रुप के, एक ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, उनको भी सिखा लो. जो ऑनलाइन और ऑफलाइन योगा कल्चर चल रहा है वो है 60 स्टूडेंट 1 घंटे की क्लास में एक साथ है ऑनलाइन. एक लैपटॉप रखा है, 60 स्क्रीन ऑन है, द टीचर इज परफॉर्मिंग एंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. आई जेन्युइनली डोंट नो, बिकॉज
एक वन ऑन वन क्लास में मुझको ऐसा लगता है कि मैंने झोंक दिया अपने आप को पूरा। करेक्ट। वो जब क्लास 1.5 घंटे की खत्म होती है ना, या 2 घंटे की मेरी उस एक पर्सन के साथ खत्म होती है, करेक्ट। मेरा शरीर ऐसे होता है, बिकॉज जेन्युइनली मेंटली एंड फिजिकली आई हैव गिवन ऑल माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट क्लास। मैं घुस चुकी हूँ उस प्रोसेस के अंदर। 60 लोगों में वो क्लास करने के बाद भी, इफ यू आर रेडी फॉर अनदर योगा क्लास 60 स्टूडेंट्स की, सो 120 बच्चे आज आपने सिखाए हैं एंड यू वेरी एनर्जेटिक। आई डोंट नो व्हाट यू हैव गिवन एक्चुअली। यानी आप, आपके पास टाइम नहीं है। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप वो 1 घंटे में हर 60 में से एक स्टूडेंट पे आप ध्यान दे पा रहे हो करेक्ट। कि अच्छा इससे पैर ऐसे नहीं हो रहा, इसको ज़रूर ये प्रॉब्लम होगी, क्या मैं इससे बात करूँ, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है, आपका क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, इतने में दूसरा मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा अच्छा आपको भी देखते हो, आपको ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने में 60वां नंबर का बच्चा भी बोल रहा है। 1 घंटे में मैं, हाउ कैन आई बी मेंटली प्रेजेंट, यू नो, योर अंडरस्टैंडिंग, एंड हाउ कैन आई डिलीवर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी। इसीलिए योगा क्लास, ग्रुप क्लास का कॉस्ट भी बहुत कम होता है। एक महीने भर की क्लास के लिए सिर्फ एक पर्सन 1500 रुपये पे करता है, विच इज़ वेरी लेस, एक्सट्रीमली लेस। बट कमा रहे हैं टीचर्स, कर रहे हैं ऐसा, दे वॉन्ट टू रन दे क्लासेस टू ईच इट्स ओन, जैसा जिनको ठीक लगे। आई पर्सनली एम अ नॉट बिलीवर ऑफ दिस, बिकॉज एज अ टीचर आई बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग। उसको मेरी बात समझ में आई है या नहीं, मतलब मैंने उसको जो कुछ बोला उसको नॉलेज उसको गेन कर पाए कि हाँ, नहीं मतलब सामने वो वाला उसका बंदा। वो जो 1 घंटा वो मेरे पास आया था या आई थी, कुछ तो उसको उसकी मेहनत का मिला है मेरे से, जो जिसका उसने मुझे पे किया या नहीं। करेक्ट। इवन इफ दैट पर्सन इज गिविंग यू 10 रुपीज, दैट पर्सन शुड गेन वैल्यू, मतलब उसको कुछ ना कुछ हाँ, मिलना चाहिए मतलब उसके मुझको बदले। देनी है यार वैल्यू। मतलब हाँ, मैं, जैसे मैंने कहा, मैं एक बहुत इमोशनल टीचर हूँ, मैं जुड़ जाती हूँ अपने स्टूडेंट अपने से। स्टूडेंट के साथ, नॉट दैट हर स्टूडेंट के साथ, बट बट हाँ। जिसका मुझे दिख रहा है यार वो जेन्युइनली अपनी लाइफ बदलना या बदलना चाहती है, बदलना चाहता है या बदलना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई ओ दैट हाँ, यू कैन दैट मच सेंस इट। वैल्यू। वो मेरा या एज अ टीचर वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट। सो ऐसा नहीं कि मैंने एक्सपीरियंस करके नहीं देखा कि व्हाट इट फील्स लाइक टू टीच अ क्लास ऑफ 25 to 30 people. करेक्ट। I did that and I'm telling you, I felt the worst. I felt so lost. पागल जैसा बस चीजें कर रही हूँ, आपको समझ आया, आपको समझ आया, आपको समझ आया, नहीं समझ आया, फिर करती हूँ। दूसरे बोल रहे हमें तो आ गया समझ, हम तो खाली बैठे हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग ना मुझे जज कर रहे होंगे, आई एम नॉट अ गुड टीचर। मैं तो एक ही इंसान पे बहुत ज्यादा बात करने लग गई, मैंने दूसरों को पूछा ही नहीं। देन यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द अदर पर्सन टू द थर्ड पर्सन। फिर आपको लगता है शिट, तीसरे पर्सन से ज्यादा ही तो कोई टेंशन नहीं दे रही, बाकी लोग ये बहुत तो फील नहीं। भागम दौड़ हो जाती है। इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। और एट द एंड ऑफ इट आपको याद भी नहीं आपने क्या किया क्लास में, आपने किसी करेक्ट। को क्या वैल्यू प्रोवाइड करी, ठीक बट है, मैं चल रहा है। जल्दी से जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे ही होता है, I mean। हाँ, इट्स डन, इट्स डन, it's done, and it feels stupid to me. It feels stupid. I mean, I can understand if there's a workshop of 2 days कि आप ऑलरेडी एक लेवल पे योगा पे पहुंच चुके हो, और एक किसी बहुत बड़े टीचर ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज सीखने जा रहे हो आप, दैट इज वेरी डिफरेंट। वहाँ पे तो 100 लोग भी आ जाए तो समझ में आता है, क्योंकि गोल वहाँ पर सबका सेम है। जैसे करेक्ट। अगर कोई बहुत बड़े टीचर ने आके एक वर्कशॉप करी है, वो एक ब्रेथ, स्पेसिफिक ब्रेथ प्रैक्टिस के ऊपर एक वर्कशॉप देना चाहते हैं कि ये ब्रेथ प्रैक्टिस क्यों की जाती है और इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, हम ये करेक्ट। कैसे करते हैं। तो वहाँ पर उस क्लास में जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स है, आपको लगता है कि कोई भी बिगिनर होगा? कोई नहीं। नहीं। वो वर्कशॉप, वो स्पेसिफिक वर्कशॉप अटेंड करने वाला वही इंसान होगा जो ऑलरेडी योगा जानता है या जो करता आ रहा है, तो उसको पता है हमें अपनी प्रैक्टिस में एक ये चीज़ मिसिंग लग रही थी, हम ये वाला भी टीचर से सीख लेते हैं। तो वहाँ पर एक एनर्जी एक सेम सिमिलर लाइन में जा रही है, सबकी एनर्जीज मिली हुई है, एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही है, एक ही गोल है। इन दैट वे आई कैन अंडरस्टैंड कि ग्रुप क्लास कैन बी वेरी बेनिफिशियल। बट कोई ऐसा लाइफस्टाइल सीखना चाह रही है कि आज मैंने सोचा है कि मैं योगा करूंगा या मैं योगा सीखूंगा, क्या होता है, मैंने ग्रुप क्लास ज्वाइन कर ली, यू विल ओनली फील लॉस्ट, आई थिंक। करेक्ट। थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आएगा, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक आप कुछ अचीव करने वाले हो ऐसा कुछ मेजर। करेक्ट। तो युक्ति भाटिया जी, हम हमारे आखिरी सवाल पे आते हैं। ये तो जैसे अभी, अब जो कोई भी ये पॉडकास्ट सुनेगा, उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जागेगा, कहीं ना कहीं उसके दिल में ऐसे लगे चलो एक बार देखता हूँ मैं ट्राई करके क्या होता है योगा, या तो फिर सर्च करेगा या तो फिर कुछ ना कुछ करेगा। सो आई जस्ट वांट यू टू नरेट पीपल, लोगों को बताओ या गाइड करो लोगों को कि
क्यों योगा करना चाहिए, अगर योगा कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए या कैसे जाना चाहिए, लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहते हो whoever is watching this podcast, anyone, I don't know who is the viewer, but हम किसी को भी अगर ऐसे इतना सा भी ज्ञान दे पाए इससे कि आप योगा करो लेकिन दिस इज द राइट वे, गो विद दिस पाथ, गो विद दैट पाथ, एक रास्ता बताओ और उनको बताओ कि कैसे अपनी लाइफ में योगा को लाए सही तरीके से। सबसे पहली चीज तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको वाकई में नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, क्लेम एंड अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ चलो योगा है, बाबा रामदेव जी कुछ करते हैं टीवी पे आके और पूरी दुनिया पूरी कंट्री ने फॉलो किया है, एज अ लेमन सब लोग को एक यही अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आपको ये सुन के ऐसा लगे कि यार इतनी बातचीत मैंने आज सुन ली योगा के अराउंड, तो मुझे ट्राई तो करना चाहिए क्या है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज नॉट गो टू गूगल एंड रैंडमली चीज़ें अपनी सर्च करने लगो, बिकॉज अगेन आप कंफ्यूज रहोगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज। You need to find yourself a good teacher. I'm not saying come to me. Don't if you don't want to. I'm not promoting myself. There are so many teachers in this country. There are so many teachers in this world. Very good teachers. As per your budget, whatever fee you can provide to your teacher, because again the fee also depends on the kind of skill set the teacher is sharing. उन्होंने क्योंकि अपना स्किल सेट सीखने में उन्होंने भी उतना टाइम एंड पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लगता है कि ये बिगिनर लेवल तक मुझको इन टीचर के साथ अच्छा लग रहा है, डे 1 से मैं इनके साथ एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ अ गुड टीचर। धीरे 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 आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन बिल्ड करना है कि मुझे कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पूरे 100% समझ में नहीं आ रही, बट आई एम जस्ट सरेंडरिंग माई सेल्फ टू माई टीचर। द प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इन योगा, in any stage of your life where there's a relationship between teacher and student. There has to be surrender 100%. जब तक आप टीचर पे फेथ नहीं दिखाओगे, टीचर won't be able to convey and you won't be able to receive. Correct. That wall of ego has to break down. You need to surrender completely ताकि आपके अंदर जहन में आपकी उनकी सारी टीचिंग्स बैठ सके। तो आप उन पे भरोसा रखो, you show up for the class every day और मे बी 3 days अ वीक, मैक्सिमम 3 days, इतना भी काफ़ी है। 1 घंटा क्या आप अपनी लाइफ में नहीं निकाल सकते, है ना? और वही सिर्फ 3 दिन हफ्ते के। हर किसी के पास इतना टाइम है लाइफ में, तो आप सिर्फ उस 1 घंटे के लिए उस क्लास में जाओ, आप जस्ट फील करो आपको क्या महसूस हो रहा है। इट्स नॉट लाइक जिम की, जिम में गए हो तो आपको वेट्स लिफ्ट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जिम। बट योगा क्लास में एटलीस्ट आपको फ्रीडम है, यू वांट टू डू द मूवमेंट और यू जस्ट वांट टू ऑब्जर्व कि कैसे हो रहा है मूवमेंट, यू वांट टू टेक योर ओन टाइम, यू वांट टू गो स्लो, यू वांट टू नॉट डू इट, यू वांट टू डू इट। There is so much freedom in that. None of the teacher is ever going to force you to do something. There will be so much patience, there will be so much freedom for you to understand कि तुमको क्या पसंद आ रहा है। So वो patience रखो, वो discipline दिखाओ that you go to the mat every 3 days, learn from your teachers, and then with time जैसे जैसे आपको समझ में आएगा you switch to next maybe some other teacher or stay connected with that same teacher, जो भी आपको ठीक लगे, बट यू स्टे इन दैट प्रोसेस। हर लाइफ की हर एक चीज़ में यही होता है कि वो एक बोरिंग सा मोनोटोनस प्रोसेस होता है ना, वो ही अल्टीमेटली आपको आपके गोल पे लेके जाएगा, नो मैटर हाउ बोरिंग दैट फील्स। करते टाइम आपको चाहे जितना भी बोरिंग लगे, बट यू डू इट, फाइनली व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ इट, you will never come back from it. You will never come back from it because it will make your life smooth. It will add so much value to your life as a human being. It will make you a better person, and it will also teach you how to respect your own body, how to respect your own health, how to take care of yourself, because if you care about other people, you can only be present for them 100% if you are present with yourself. So this will help you in connecting with your breath, being there with yourself 100%. And also I would like everybody who's watching this or listening to this podcast to please respect your teachers. प्लीज़ रिस्पेक्ट, मतलब चाहे वो जो भी प्रोफेशन हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एक लैंग्वेज आप सीख रहे हो किसी से, या कोई भी आर्ट फॉर्म सीख रहे हो, no matter what the gender is, you need to show utmost respect to that profession, to that teacher, no matter what the profession is, because कोई अगर वो चीज़ कर पा रहा है, कोई अगर इतना मेजर लेवल पे उसकी विजिबिलिटी है, चाहे वो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे हो या वर्ड ऑफ माउथ से अगर इतना जाना जा रहा है वो, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी रही है। देयर हैज़ बीन अ मेजर स्ट्रगल, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क पुट इनटू दैट प्रोसेस,
not to ultimately be disrespected by somebody that I have no idea about this person, why the person is just randomly coming to that teacher's life and disrespecting. So you need to show utmost respect to all your teachers because they are working very hard. For a student, teacher is just that 1 hour of that day. Correct. But for a teacher, student is everything she's got. वो दिन रात बस उस स्टूडेंट को कैसे डिलीवर करना है वो सिर्फ ये सोचती है, सिर्फ. आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस. जब मेरी क्लास नहीं होती तो मेरे दिमाग में भी मेरी क्लास ही चल रही होती है. इफ आई एम विद माई पार्टनर आई एम टॉकिंग अबाउट योगा एंड माई क्लास ओनली. इफ आई एम विद माई मदर आई एम डिस्कसिंग विद हर कि आज मैंने क्या क्या सिखाया, आज हमने क्या डिस्कवर किया. उनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मुझे लगता है मुझे ऐसे होना चाहिए. सो फॉर द स्टूडेंट just that 1 hour of the day जहाँ वो कुछ कर रहे हैं बस. But for the teacher, it's everything they've got. And they're working day and night to deliver the best they can. So you need to show utmost respect to your yoga teachers, and please don't negotiate. For the love of God, for the love of negotiate for the yoga, skills. Please don't negotiate. And please don't make it sound like you're going to a shop to just buy some stupid product. Correct. Asking the questions like कितना रेट है आपका, कितने में सिखाते हो आप, कितना सिखा दोगे इतने पैसे में. Okay. कितना रेट है आपका, हाँ कितना सिखा दोगे इतने पैसे में, अच्छा इतनी फीस में बता दो आप ये चीजें कवर करवा सकते हो. तो ऐसा लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सीखने आ रहे हो मेरे पास, या आप कोई बेसिन का नल खरीदने नहीं आ रहे हो मेरे पास कि इतने में इतना मिलेगा. वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. सो हाँ, you need to be better human being as a student for your teachers. You don't negotiate because you won't believe how students come to us and question ki ye kuch zyada महंगे नहीं हो आप. Like I understand if it is not in your budget, but there's a way to put it across, you know. Okay, I'm sorry, I don't think I can afford this. Maybe some other day or whatever. Like we also don't mind if somebody does not show up in the class ki उन्हें नहीं पे करना था हमें. We understand not everybody has that kind of a budget. They can go to some other teacher. But being present in that conversation and saying, don't you think you're charging too much? No, I don't think that. If you think that, you're most welcome to just leave the space, no? Don't continue that conversation. So उस tone में इतना disrespect आता है कि वो teacher student वाला relationship बनने से पहले ही टूट चुका है. Correct. When you're questioning ये क्या price है, ये क्या कर रहे हो, will you ever talk to your teacher in school like that? Correct. Respect. Yeah, there has to be utmost respect. संस्कृति में बोलते ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. तो इसका मतलब जरा समझो. करेक्ट. इतनी हमारी संस्कृति की बात करते तो इतनी, इसलिए मैंने बोला था ना मैं लास्ट में आऊंगी कि वो हर आदमी जिसने गलत किया तो वो एक हिंदुस्तानी था. करेक्ट. लोग कितना हमारे कंट्री में वो सूडो रिलीजन वाला बिलीफ लेके चलते हैं कि हम तो कट्टर ये है, हम तो कट्टर वो है, हमारी संस्कृति हमारा ये. बट जब ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में चीजें आती है ना, व्हेन दे जेन्युइनली हैव टू forget about religion, when you just have to be a human being. You can't be all that. These religion people just fail at that. गुरु और शिष्य का तत्व ही भूल जाता है. ह्यूमन बीइंग होना ही भूल जाता है. Forget about respecting guru. वो ह्यूमन बीइंग होना ही भूल जाता है. Like I told you, none of the Westerners did that to us. They were extremely professional. Why in every situation with all of my friends who are yoga teachers, why was an Indian guy doing that to us? Correct. All these Indian guys who talk so much about Sanskriti, who talk so much about religion and yoga हमारा है, ऐसा है, वैसा है. किसका है? If this is who you are. Correct. So वो जो सूडो संस्कृति वाला चीज है ना, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे. इंटरनली पीपल रियली नीड टू वर्क अ लॉट. पीपल रियली नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस. सो युक्ति भाटिया जी, काफी मजा आया आपसे बात करके. मुझे भी है ना. आपने आई होप आपने एंजॉय किया रहेगा. बहुत ज्यादा. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लवली. आई लव टू टॉक अबाउट इट. मेरे जोश से ही आपको पता चल गया होगा कि मुझे कितना योगा ऐसा क्लास. जल्दी हम अगर इस पार्ट को अगर हमारे व्यूअर्स ने पसंद किया तो वी विल डू एन नेक्स्ट पार्ट आल्सो. आई वुड लव दैट. एंड वी विल डू ऑन सम अदर स्पेसिफिक टॉपिक्स सो दैट पीपल शुड नो मोर डेप्थ इन अबाउट दैट. करेक्ट. है ना. करेक्ट. तो थैंक यू सो मच. धन्यवाद आपका आने के लिए हमारे शो पे. दिस इज मी जितेश राठौड़ फ्रॉम द याडीज पॉडकास्ट शो, साइनिंग ऑफ विद युक्ति भाटिया.